स्टार्ट कर दिए सर। Okay. A very good morning to all the participants. All participants आप सबका स्वागत करते हैं आज के 5th सेशन में and continuing from our earlier 4 sessions which have been completed. Last session में हमने skill development पे काफी focus किया था कि यदि आपने कुछ अपना business शुरू करना है, you want to become a business entrepreneur or you want to get into employment, what are the skills which are required? और जो स्किल्स हैं वो स्किल्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं? As again I am telling you, यहाँ पे इन सेशंस में in this 6 sessions we are telling you all the information sources जहाँ से आपको relevant चीजें मिल सकती हैं. Now there are different kind of participants. कुछ participants होते हैं जो कहते हैं आप हमें information दे दीजिए, correct information दे दीजिए, validated information दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कहते हैं आपने जो इंफॉर्मेशन बताई, कैन यू हेल्प अस टू एक्सेस दैट, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं. दोज आर अनदर कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो इन सेमिनार्स में हम दोनों कैटेगरीज को एड्रेस कर रहे हैं. दोज हु कैन डू इट ऑन देयर ओन, वी हैव टोल्ड यू द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और जो हेल्प चाहते हैं, जिनको उन सेशंस को और प्रैक्टिकल वे में समझना है, जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए, दे रिक्वायर मेंटरिंग सपोर्ट, हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. Because it is very important, I am telling to both the categories, both kind of participants, applying in the government schemes, you need to have an experience, you need to be quite practical. कैसे पहले आपने अप्लाई किया है, क्या उसमें छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, in that particular aspect, once the information has been given, then how to apply. So we are there at ECEL, School of Open Learning, Delhi University, to help you out. नाउ आपके बहुत क्वेरीज आए हैं. एक क्वेरी जो ओपनिंग में वरिंदर सर ने आपको बताया कि जो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग है, ऑन अकाउंट ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज देयर हैड बीन अ लॉकडाउन स्टिल इन दिल्ली, द एंटायर कॉलेजेस एंड द स्कूल्स हैव नॉट बीन ओपन्ड. सो विद लिमिटेड कैपेसिटी जो भी काम यहाँ हो रहा है, एक ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर सकें. तो टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ डिले हुआ है, लेकिन एज हैज बीन टोल्ड टू यू, it will get updated like on an as soon as possible basis. आपको सारे 6 recordings मिलेंगी. 4 recordings का already यहाँ टेक्निकल टीम मिड्डा सर ने उनका एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है. So we will की queries थी regarding the seminar, so we have told you about the certificates. Certificates के लिए भी I have told you, once the 6th session gets completed, in the last session we will tell you the timelines. Within the month of June, okay, I have been informed by the technical team there is some audio interruptions are there. कुछ wait for some time and we are trying to fix it up. Maybe 5 minutes. जैसे हो जाता है we will start the session. In the meantime, I'll request जो भी आपकी queries हैं, please use the chat box. उसमें आपकी जो queries हैं पिछले seminars की हैं, वो queries आप chat box में please log in कर दीजिए. कुछ communication में issue आ रहा है, maybe you are not able to hear me properly. We are trying to fix it up. जैसे ही वो ठीक हो जाता है, we will start the session. Please put your comments in the chat box. We are waiting for the technical issue to be resolved. The moment it is okay, we will start it. Okay. So I have got a green signal कि the technical issue has been resolved, and hopefully you can hear my voice clearly. If any one of you is facing any issue, kindly just put your comments in the chat box. So as I was telling you, the webinar recordings will be available. Second query was regarding the certificates. About the certificates, we will provide you e-certificates.
E-certificate means based on your email IDs, we will issue you the email certificate. Through the email, we will provide you e-certificates. And within the month of June, all the participants who have attended the session, they will be given the e-certificate. So that was your second query. One important thing which I want to say, every session से पहले हम एक मेल भेजते हैं जहां पे हम आपको लिंक देते हैं रिगार्डिंग जैसे आज का सेशन है तो उसको ज्वाइन करने के लिए जो मीटिंग का लिंक है. There are many emails which comes कि उनको लिंक नहीं मिला है, so they can go to the SOL home page, वहां पे लिंक is there. Secondly, मेल से भी आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है. बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां पे थ्रू रेफरल्स आपने किसी अपने सहयोगी को, अपने कोलीग को बताया और एंड ही और शी इज इंटरेस्टेड, लेकिन उनका ईमेल आईडी हमारे पास नहीं है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज फॉरवर्ड योर ईमेल आईडी एट द ईमेल विच हैज बीन गिवन टू यू. उस ईमेल पे आप हमें भेज दीजिए कि आपको ये सेशन अटेंड करना है. व्हेन द नेक्स्ट लिंक गोज आउट, हम उसमें आपको इंक्लूड कर लेंगे. क्वेरी नंबर 4, चैट बॉक्सेस में कई बारी कुछ मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने अपना इशू रेस किया था, क्वेरी रेस किया था, लेकिन उनको उसका आंसर शायद नहीं मिला है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एवरी सिंगल ईमेल आई एम पर्सनली लुकिंग इनटू, एवरी कमेंट, एवरी मैसेज आई एम लुकिंग इनटू. और हमने एक अच्छी चीज जो रखी है 3 to 5 डेज, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 5 डेज के अंदर एवरी मैसेज विल गेट रिप्लाइड. सो जिस डेट को आपने अपना ईमेल भेजा है या मैसेज भेजा है, यू कैन काउंट योर 3 to 5 डेज. लेकिन चैट बॉक्स में आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज कर रहे हैं, प्लीज मेंशन योर ईमेल आईडी आल्सो, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, यू पुट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स, बट हाउ शुड आई रिप्लाई टू यू? If I don't have your email ID, I cannot reply you back on the chat. क्योंकि जो चैट के आपके मैसेजेस हैं, जो क्वेरीज हैं वेबिनार में, वो आफ्टर द सेशन इज ओवर आई गेट टू लुक एट देम. एंड उसमें कई मैसेजेस मैं देखता हूं जो क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज में ईमेल आईडीज मेंशन नहीं है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, जो भी आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट पुट अप करते हैं, प्लीज मेंशन योर ईमेल आईडी. अगेन क्वेरी, जो फर्दर क्वेरीज थी, we will do some dedicated sessions about the Q&A. इन सेशंस में बहुत क्वेरीज भी आई हैं, जो बहुत अच्छी बात है. आप सबको मैं उसके लिए थैंक्स करना चाहता हूं. बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ईमेल्स आई हैं, क्वेरीज आई हैं, और आपके आइडियाज भी आए हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई है. इट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर द फैकल्टी टू गेट टू नो योर इंटरेस्ट. नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जो आपका आइडिया है, जो आपका प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों की क्वेरी है कि हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, या उन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं उसके बारे में, उन्होंने पूछा उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें. कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स इस कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, जैसे मास्क हैं, दे वांट टू गेट इनटू एक्सपोर्ट, दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक सेल्स, या छोटे स्केल्स पे वो सैनिटाइजर, मास्क बनाना चाहते हैं. उसके लिए क्या टेक्निकल नॉलेज है और हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हाउ टू डू मार्केटिंग. सो ऑल दोज आर वेरी एनकरेजिंग. एज आई हैव टोल्ड यू, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग यू इन दिस सेमिनार्स, लेकिन इसके बाद डेडिकेटेड बेसिस पे Q&A. एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो भी आपके ईमेल्स आए हैं और जो दिल्ली में है, आई हैव गिवन आउट अ मेल टू एवरीवन. जिनको वो ईमेल नहीं मिली है, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग, हम एक क्वेश्चन आवर सेशंस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, 1 से 2 सेशन एवरी वीक, जो यूट्यूब लाइव SOL चैनल के थ्रू हम करेंगे, जिसमें सिर्फ हम आपकी क्वेरीज लेंगे. सेकेंड थिंग, जो दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास NCR एरिया में है, गुड़गांव में, नोएडा में, और जो दिल्ली आए हुए हैं मे बी ऑन अकाउंट ऑफ सम रीजन, we will be calling them at the School of Open Learning. We will form some groups. उन ग्रुप्स के अंदर जो आपके कॉमन आइडियाज है, कोई मास्क बनाना चाहता है, कोई किसी प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है, we will give some projects to you. We will give volunteering work to you, जो आपको एक्सपीरियंस देगा, जो आपके काम से रिलेटेड है और जो आपको फर्दर जॉब लेने में हेल्प करेगा, या यदि कुछ आप अपना काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, so it will get into your resume कि आपने 3 महीने, 6 महीने, 1 मंथ आपने SOL E-Cell में वॉलंटियरिंग किया, आपने अपना इंटर्नशिप किया. So we will be starting that process from next week onwards. About the timelines, how to come to SOL, we will tell you. So please keep on looking at the home page. I will request all of you to subscribe to the SOL YouTube channel, जहाँ पे कोई भी नई इंफॉर्मेशन होती है, अपडेट होता है, we post that. And most importantly, please provide your email ID in the chat box.
सो दैट वी कैन एंश्योर कि जो हमारे पास एक ग्रुप ईमेल है उसमें वो आपका ईमेल आईडी इंक्लूड हो जाए और हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। नाउ कंटिन्यू, इफ यू कैन सी इन टुडे स्लाइड, हमने लास्ट जो अपना सेशन फिनिश किया था उसमें हमने स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक अमेजन सेलर यूनिवर्सिटी का आपको स्लाइड दिखाया था जो इस वक्त आपके सामने है। देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स जो पूछना चाह रहे हैं हम मार्केटिंग कैसे करें, हम ब्रांडिंग कैसे करें। कुछ पार्टिसिपेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि जैसे लॉकडाउन था उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, शॉप्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, ऐसे टाइम में आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स यू दैट ऑप्शन। ई कॉमर्स में वर्ल्ड इज योर प्लेटफॉर्म। Yes, there is a lockdown in India, but there are certain countries like maybe in the Europe, Sweden is one country. There are some other countries also where there is a partial lockdown, or you can have e-commerce transactions. So e-commerce में you can list your products, you can have the orders, and you can always inform your customer that once the lockdown gets eased out, lockdown खुलता है, then the products will be supplied. Many of the e-commerce companies are doing this way. So सेलर यूनिवर्सिटी में आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो आप देख रहे हैं एक्टिवेट योर सेलर अकाउंट, जो मैं कर्सर पॉइंट आउट कर रहा हूं, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज गो टू अमेजन सेलर सेंट्रल। इसको अगर आप गूगल करेंगे इंडिया, टॉप लेफ्ट पे यदि आप कर्सर देख रहे हैं, इस पे ई कॉमर्स मार्केटिंग रिलेटेड, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू हैव अ गुड प्रोजेक्ट, आपको फाइनेंस मिल जाता है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, बट यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस पे कर सकते हैं, इसी तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हाउ टू डू प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे बनाएं, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, उसकी जो पिक्चर्स आपने पोस्ट करने हैं, उसके जो वीडियोस आपने पोस्ट करने हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, प्राइसिंग कैसे करनी है, क्या रिफंड का प्रोसेस आपने रखना है, क्या पेमेंट का प्रोसेस रखना है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे लेनी है। काफी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से एट नो कॉस्ट मिलती है। एंड अमेजन इटसेल्फ इज अ कंपनी विच इज इनटू ई कॉमर्स, सो दे हैव क्रिएटेड दिस वेबसाइट जहां पे जो इनके एम्प्लॉइज हैं या जो उनके प्लेटफॉर्म पे सेलर्स हैं, उनको कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, कैसे लिस्ट करना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देख रहे हैं, ये उसी यूनिवर्सिटी, सेलर यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्लाइड है, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। जीएसटी के बारे में यदि कोई साइंस के बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स के बैकग्राउंड का स्टूडेंट है जिसको जीएसटी की नॉलेज नहीं है क्योंकि उसने बहुत साल पहले शायद ग्रेजुएशन किया था, या अभी वो रिटायरी है, मिड करियर प्रोफेशनल है, जीएसटी केम रिसेंटली, सो जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन, हाउ टू एक्टिवेट योर सेलर अकाउंट, शिपिंग ऑप्शन। शिपिंग ऑप्शन मीन जो कस्टमर तक आपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कैसे आप अपनी कोरियर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे थ्रू रेल, थ्रू एयर, थ्रू कार्गो, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को आप यूज कर सकते हैं। अगेन आई वांट टू इन्फॉर्म यू, इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन सेशंस के थ्रू हम कैसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को कैसे कम कर सकते हैं, अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी सेट कम प्राइस या उतना ही प्राइस ऑफर कर रहा है। जहां पे प्राइस को आप ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू, जैसे आप गवर्नमेंट का सेविंग अकाउंट खोल लिया, आपने गवर्नमेंट की कोरियर फैसिलिटी यूज कर ली, प्राइवेट सेक्टर में भी दो फैसिलिटीज आर देयर, बट वी आर गिविंग यू अ चॉइस। प्राइवेट सेक्टर हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, गवर्नमेंट सेक्टर हैज इट्स ओन प्लस। कहीं पे कॉस्ट कम है, देयर मे बी सम क्वालिटी इश्यूज, कहीं पे क्वालिटी अच्छी है, देयर मे बी costing issues, pricing issues. So we have to see what is the best. That is what we are doing at the eCell. अगर कहीं पे how to apply, how to basically take up any, अगर आपका कोई query है, कोई issue है, we will help you to do all the admin work. We will do all the back office work, ताकि आप अपने business में focus कर सकें, आप अपने job पे, अपने skill development में focus कर सकें. I move further. ये स्लाइड भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, क्योंकि आपकी क्वेरीज आई हैं, आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं। लेट मी थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत ही क्विकली इस कॉन्टेस्ट, आई विल नॉट कॉल इट अ कॉन्टेस्ट, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। हमने
8 टास्क आपको बताए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स who maybe could not attend the last session, so if they are hearing this particular session today, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनको कुछ इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, जिनको शायद ठीक से समझ नहीं आया, so I am just for their benefit, टास्क 1 से टास्क 8 में से कोई भी एक टास्क आपने करना है। उसको आपने चाहे A4 साइज पेपर पे, जो भी आपका नोटबुक का पेपर है, ईमेल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, या यू कैन राइट इट इन हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल है। I am not asking everyone to write in English. Whatever language you feel comfortable, put it on a piece of paper. उसको ईमेल से आप भेज सकते हैं, उसको स्कैन करके उसका पिक्चर भेज दीजिए। Please don't send WhatsApp. I don't use WhatsApp to a great extent. आप ईमेल कर दीजिए। कुछ लोगों की क्वेरी थी इसमें गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी। फोटो आईडी वॉज जो आप अपना रिस्पॉन्स भेजेंगे, उसके साथ कोई आप अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सो दैट हमें पता चल सके किस स्टेट से आपने रिस्पांस भेजा है। आपने मध्य प्रदेश से भेजा है, आपने राजस्थान से भेजा है, क्योंकि जो हमने आगे ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, जो स्टेट लेवल पे हमने एक्टिविटीज क्रिएट करनी है, नोडल सेल क्रिएट करने हैं, उसके बेसिस पे हमें पता रहे राजस्थान, हरियाणा, नोएडा, चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, कहां से कितने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट। और इसकी एक और बड़ी एडवांटेज है, जब हमारे पास स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन होगी, देन उस स्टेट की कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर सेशंस। हम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस क्रिएट करेंगे जो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट को, असम की स्टेट को, मणिपुर, मेघालय, चेन्नई या केरला की स्टेट को, आंध्र प्रदेश, वाइजैक, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी आपकी स्टेट है, उनके डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करके, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सो इफ यू कैन रिप्लाई, यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द एक्टिविटी, you can with your email ID you can send your any government photo ID card, which can be your Aadhaar card, which can be your PAN card. PAN card doesn't have your address, but if you can give your maybe license which has a photo and address, Aadhaar card or a passport copy, that was the objective. And there are no first, second, third. I don't believe in that concept. Every participant, whatever they have contributed, we will recognize through a letter of appreciation. जो बहुत अच्छे पोटेंशियल, जिनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम मेंटरिंग सपोर्ट देंगे, उनको आगे फुल फ्लेज हाउ टू सेट अप देयर वेंचर, वी विल हेल्प देम एंड वी विल हेल्प देम टू पार्टिसिपेट इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इट इज नॉट अबाउट फर्स्ट, इट इज नो कॉम्पिटिशन, इट इज अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू। एंड लेट मी थैंक बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने, और वो खुद भी महसूस कर रहे होंगे, जब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च की, उन्होंने अपने 1 पीस ऑफ पेपर पे मेंशन किया मध्य प्रदेश में ये स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, जो शायद आपको भी नहीं पता थी, लेकिन क्योंकि आपने इस एक्टिविटी को टेकअप किया, आपने अपने लिए खुद एक इंफॉर्मेशन क्रिएट की, विच इज वेरी गुड। एंड जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, वी विल क्रिएट अ PDF फाइल, वी विल रिलीज अ ई-बुक, बोथ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, एंड इन दैट ई-बुक we will mention the names of all the persons, all the participants जिन्होंने भी उस ई बुक के लिए कंट्रीब्यूट किया। हार्ड बाउंड एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों हम रिलीज करेंगे, उसमें हम आपका नाम लिखेंगे। दिस इज अनदर वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग यू, योर एफर्ट। सो देयर इज अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। सेकंड थिंग इज, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, वी विल क्रिएट अ मैनुअल सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो बेनिफिट, और आप लोग भी बेनिफिट कर सकें जो औरों ने रिस्पॉन्स दिए हैं। आपके रिस्पॉन्स से किसी और को इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसी दूसरे को उसके रिस्पॉन्स से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वी विल रिलीज अ बुक एंड वी विल मेंशन योर नेम, विच यू कैन मेंशन इन योर बायोडाटा, कि फ्रॉम द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग देयर वाज एन एक्टिविटी इन द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट सेमिनार्स, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट, देयर वाज अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इशूड, there was a e-certificate issued, and there was a book released in which I was one of the contributor, which is a very good thing for your career development also. So I move further. Now again, बहुत सा agriculture, I have 2 slides, जैसे आपको लास्ट सेशंस में भी कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए थे, किन तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप को टेकअप कर सकते हैं, या यदि लॉकडाउन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, द मार्केट्स आर शट, हाउ यू कैन हैव अ पैसिव इनकम। एक होता है जो आपको रेगुलर इनकम मिलता है 9 to 6 जॉब से, आप कहीं पे अपना बिजनेस करते हैं,
एक होता है पैसिव इनकम. पैसिव इनकम इज stock market operations. Now stock market operations many people may not understand, but again I want to inform you a very good news. We will be doing some sessions जहां पे एक layman, एक ordinary आदमी, how he or she can benefit by participating in the stock market operations, और वहां से एक आप अपना source of income create कर सकते हैं. Let me tell you, गुजरात के अंदर there are many people who are into full time stock market. वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, दे हैव बिकम स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स. वो खुद शेयर परचेज करते हैं, एफडीज, डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, और वो औरों को हेल्प करते हैं. और दूसरों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए दे टेक अ प्रोफेशनल चार्ज. बट स्टॉक मार्केट में थ्रू योर डेस्कटॉप, थ्रू योर लैपटॉप, व्हाइल सिटिंग इन होम, थ्रू योर स्मार्टफोन, यू कैन हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. लेकिन उसमें कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करें, कैसे सेफली इन्वेस्ट करें, there are many platforms, there are many options available today जो बहुत से participants को knowledge नहीं होती. So our objective is to create income for you. बोलना और करना, I believe more in doing rather than telling. Telling is good, but telling को implement करना. So stock market से how you can create income no matter whatever lockdown is there. और दूसरी चीज, capital market में अच्छी चीज क्या है, today is a global village. We are living in a global world. So you can invest not only in the Indian stock markets, you can, while sitting in Haryana, while sitting in maybe Kanchipuram, while sitting in Vizag, while sitting in Manipur, while sitting in Gujarat, while sitting in Anand, while sitting in Jammu and Kashmir, you can invest in US markets, European market. किसी ना किसी point of time पे किसी world की कहीं market कुछ अच्छा कर रही होती है. So you can invest sitting in India and you can reap the benefits. Google, Microsoft, Bank of America, there are such big companies. ऐसी Tata Consultancy, Wipro, Infosys, across the world there are good companies, and you don't need a huge money to invest. Maybe with 1,000 rupees, 100 rupees, 500 rupees, with a very small amount. Let me tell you, less than 1,000 rupees, आप एक कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं. The moment that price goes up, you can sell it off. So this is how you can start small and you can become big. Similarly, egg market means agriculture market. हमारे देश में there are many, like you keep on listening in the print media, agrarian economy है. There are many people who are dependent on agriculture. इस सेशन के थ्रू I will request you, please look at agriculture या food processing industry में there is a huge potential for entrepreneurship. India is a very large country. हर तरीके का यहाँ पे climate है, यहाँ पे हर तरीके के fruits हैं, vegetables हैं, यहाँ पे agri products आप grow कर सकते हैं. कहीं पे बहुत बारिश है, कहीं पे दूसरे टाइप का क्लाइमेट है विच इज फेवरेबल, कहीं पे बहुत सर्दी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए सूटेबल है ग्रोथ के लिए, कहीं पे यू हैव माउंटेन्स. सो लेकिन एग्रीकल्चर में स्किल डेवलपमेंट इज नॉट देयर. अगर आपके पास स्किल आ जाती है एग्रीकल्चर में, देयर इज नो टैक्स, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट्स. जैसे बाहर की कंट्री जर्मनी, यूएस के, जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जर्मनी का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, यूएस के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं. इंडिया का जो एडवांटेज है, व्हाट इज द एडवांटेज, वी हैव अ ह्यूज कंट्री, डाइवर्स कंट्री, जहां पे एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है. लेकिन उन स्कीम्स में कैसे पार्टिसिपेट करें, कौन सा प्रोडक्ट ग्रो करें, कौन सा वेजिटेबल ग्रो करें, कौन सा फ्रूट ग्रो करें, हमें अच्छे सीड कहां से मिलती है, खाद कहां से मिलती है. एक सॉइल टेस्टिंग स्कीम थी, अगर बारिश आ जाती है हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप टीवी पे भी देखते होंगे, मेनी फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स क्या हैं. वो सारी स्कीम्स हम अगेन एक एग्रीकल्चर रिलेटेड सेशन की सीरीज कर सकते हैं एट द एंटरप्रेन्योरशिप सेल. बट आई वांट टू टेल यू एन अपॉर्चुनिटी, एग्रीकल्चर मार्केट. दूसरा ई मंडी. ई मंडी क्या है, आज जो मध्य प्रदेश का किसान है उसको सिर्फ मध्य प्रदेश की मंडी में ही नहीं बेचना, ही और शी कैन सेल इट इन पंजाब, जहां पे उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, जैसे स्टॉक मार्केट होती है. लेकिन यदि हम रूरल एरिया में जाएं इस सेशन के बाद, या यदि कोई पार्टिसिपेंट्स हैं जो विलेज एरिया से हैं, अगर आप अभी उससे जाकर पूछे एग मार्केट, ई मंडी, उसको कुछ नहीं मालूम होगा. दैट इज वेयर योर रोल कम्स इन. आप एक कंसल्टेंट बन के यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज, इसको सोशल सर्विस भी कहते हैं. यू कैन टेक अ सर्विस चार्ज, आप एक उसकी फीस ले सकते हैं. आपके लिए वो इनकम हो गई, किसान को वो बेनिफिट मिल गया. वैल्यू फॉर कंसल्टेशन
ग्लोबली इन कॉमोडिटी मार्केट्स, जैसे आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं ऐसी कॉमोडिटी मार्केट्स की भी ट्रेडिंग होती है. सो वी विल टेक अप, बट माय मेन ऑब्जेक्टिव इज लुक एट एग्रीकल्चर. यूरोप में डेयरी प्रोडक्ट्स का इंडिया से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन डेयरी में अभी भी बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है हाउ टू पार्टिसिपेट इन दैट. एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है, गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही है. अभी आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का देखें, कुछ लोग आप में से यदि बाहर की कंट्रीज को फॉलो करते हैं, वहां पे कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स होते हैं, बहुत फार्म टू मार्केट. आपने अपनी खेती में कुछ प्रोडक्ट उगाए, सीधा उसको सुपरमार्केट तक पहुंचाना, लेकिन जो ट्रांजिट है, रास्ता है, उसमें वो प्रोडक्ट खराब ना हो, डेयरी प्रोडक्ट खराब ना हो. यू रिक्वायर कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसेज. अभी उसके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम ओपन है. इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, मे बी इंडिविजुअली और एज अ ग्रुप, वी कैन हेल्प यू टू पार्टिसिपेट इन दैट. लेट मी मूव फर्दर. ये मैंने एक हिंदी में स्लाइड डाला है. उत्तर प्रदेश का राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद. उत्तर प्रदेश इज अ वेरी बिग स्टेट. वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है कृषि संबंधित, लेकिन बहुत से जो हमारे किसान भाई हैं, बहनें, उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं है हाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन ई मंडी. दैट इज वेयर योर रोल कम्स इन. दूसरी अच्छी बात क्या है, आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं लोकल एरिया में. आपको सिटीज में आने की जरूरत नहीं है. वहीं लोकल एरिया में जो एक कॉमन सर्विस सेंटर का मैंने पिछले एरिया में, जहां पे आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपको कंफर्ट लेवल, आप उस एरिया को समझते हैं, उसकी बोली को समझते हैं. वाई टू कम टू सिटीज? अगर आपको आपके डोर स्टेप पे एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स मिल जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं होती, टेल यू क्रिएट इनकम एट योर डोर स्टेप. हाउ टू डू दैट? दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, एंड बी कनेक्टेड विद द ई सेल. लेट अस मूव फर्दर. स्किल डेवलपमेंट संबंधित कुछ स्लाइड्स मैंने आपको पहले दिखाए थे. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक अभी जो ये कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ था, दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि जहां पे एट अ फ्री कॉस्ट और एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज दे आर गिविंग यू वेरियस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज. नौ बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करना चाहते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले स्किल्स अपने अंदर लाइए, स्किल्स को लाने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करिए, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लुक एट डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन. एक जॉब क्रिएटर बनिए. कुछ लोगों के पास फैमिली बिजनेसेस हैं जिनका ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है. यस, इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर देम. आप स्ट्रेट अवे उस काम को अच्छे प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं, साइंटिफिक वे में कर सकते हैं. जितनी नॉलेज आपको मिली है, उस फैमिली बिजनेस की आप इनकम बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम है, इस तरीके के बड़े बिजनेसेस हैं. नो हल्दीराम, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. वाई? एक बहुत ही फैमिली ओन्ड बिजनेस था, लेकिन आज इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स में, बड़े बड़े होटल चेन्स में, दे हैव चेंज्ड. उन्होंने समय के साथ अपने को बदला. एविएशन में उनको लगा, एयर कार्गो, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियंस हैं, जिनको एक सर्टेन काइंड ऑफ फूड पसंद है. या इंडिया में बड़े सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पे आप एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खा सकते हैं. उस अपॉर्चुनिटी को उस कंपनी ने देखा. या तो वो कहते हैं जैसे हम चल रहे हैं हम तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन समय के साथ उन्होंने बदला. आज यदि आप उनके आउटलेट्स पे जाते हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस वेरी प्रोफेशनल. आज वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेते हैं. जो पहले उनका सिस्टम था कैश पेमेंट, वो भी है. साथ में दे हैव चेंज्ड, एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे दे आर प्रोवाइडिंग द फूड. बाहर की कंट्रीज में यदि आपने काम किया है, यूएस में बहुत सारे सुपरमार्केट्स में, बहुत हमारी इंडियन कम्युनिटी, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडियंस आर देयर, मे बी फॉर बिजनेस, मे बी फॉर जॉब. अब उनको जो इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए, वो प्रोडक्ट्स हल्दीराम या ऐसे और बहुत कंपनीज हैं जो उनको वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं. तो एक्सपोर्ट इज अ गुड ऑप्शन. सो हाउ टू एक्वायर द स्किल्स? टाटा कंसल्टेंसी, आईटी कंपनीज में यदि आपने काम करना है, इस कंपनी ने बहुत सारे ऐसे स्किल कोर्सेज इस पे प्रोडक्ट, इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किए हैं. उसको आप कर सकते हैं ऑनलाइन अपने घर पर, फ्रॉम द इंटरनेट कैफे, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल. गेट सर्टिफाइड. जब आप ये टेक्निकल कोर्सेज, ये सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज करते हैं, कल को जो टीसीएस में यदि आपको ज्वाइन करना है, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ऐसी कंपनीज में, आईटी कंपनीज में आपने काम करना है, यदि उन्हीं कंपनीज के द्वारा जो प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, यदि आप वो कर लेते हैं, यू आर इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जो उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, आपने उन्हीं कोर्सेज को कर लिया. कल को जब वहां वैकेंसी निकलती है और फ्यूचर में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में पहले भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी और आने वाले समय में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, जो अगेन हमने आपसे बात की थी, इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव है रियल टाइम इंफॉर्मेशन. एक जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरनेशनली यूनाइट, कोई ना कोई नई स्कीम, कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा होगा. क्या हम वहीं पे रुक जाएं जो 2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है, 2 महीने पुरानी है, या आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दें? दैट इज व्हाट इज द यूनिक पार्ट एट दिस एंटरप्रेन्योरशिप सेल. वी आर प्रोवाइडिंग यू इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी है, जो उसमें नए चेंजेस आए हैं या जो न्यू लॉन्च हो रहे हैं, ताकि आप अप टू डेट हो. यू आर इन ट्रेंड विद द टाइम. आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो. जब आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, यू विल हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आई हैव सीन मेनी केसेस, इंफॉर्मेशन मिली नहीं, इंफॉर्मेशन मिली तो टाइम खत्म हो गया था, इंफॉर्मेशन पता चली एक दिन पहले, डेडलाइन थी नेक्स्ट डे, सो यू डोंट हैव द टाइम. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू टेल यू इंफॉर्मेशन टाइमली, आपको समय मिले, उस समय में आपको हेल्प किया जाए, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. There are many participants who have engineering background. I get a lot of chat messages, बहुत सारे emails भी आए हैं. Let me thank you all of them. कोई कर्नाटका से है, कोई मिजोरम से है, कोई साउथ से है. There are many people who have an engineering background. ये स्कीम जो आप सामने देख रहे हैं, टुलिप, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये कल येस्टरडे लॉन्च हुई है. अगेन जो पहले स्लाइड्स में भी दिखाया था, इंफॉर्मेशन कल हुई, आज आपके सामने है. सो टुलिप एक ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट से. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में यदि आपको इंटर्नशिप करना है, जिनका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग इन पर्टिकुलर, यू कैन गो टू द टुलिप वेबसाइट, जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं. रजिस्टर योरसेल्फ. यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं. उसमें उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की प्रोफाइल चाहिए, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हैं, और मे बी दे हैव सम एक्सपीरियंस. सो वेरियस काइंड ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आर देयर. This is the latest information, again a source of learning, a source of acquiring experience. You can participate in it. Let us move further. India International Skill Centers, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बोला था, और मैं कुछ स्किल डेवलपमेंट पे जो हमने पिछला सेशन और आज के सेशन को भी फोकस कर रहे हैं, जो आपकी भी बहुत उसमें डिमांड थी. प्लीज लुक ग्लोबल, प्लीज लुक ग्लोबल. आई एम रिपीटिंग द वर्ड. व्हाई आई एम सेइंग दिस? टुडे वी हैव अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. आप दिल्ली में बैठ के यू कैन परचेज समथिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. यूएस में बैठा थाईलैंड से कुछ ले सकता है. आप इंडिया में बैठे कन्याकुमारी से कुछ ले सकते हैं. कन्याकुमारी का सिटीजन मे बी कुछ बांग्लादेश, कुछ पाकिस्तान, वेरियस एवर कंट्रीज. देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर अ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ ट्रेड इज देयर. सिमिलरली स्किल प्रोफेशनल्स, डोंट लिमिट योरसेल्फ. जो आप जॉब सर्च करते हैं, कैरियर सर्च करते हैं, इस पे मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा रेलेवेंट स्लाइड रखा है, शायद वो आपको बहुत अपील भी करे और वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है. इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स के बारे में आपको बताया था, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है. यदि आपने कहीं ग्लोबल करियर देखना है तो हाउ टू गेट योरसेल्फ स्किल्ड. सो आई एम शोइंग यू दैट स्लाइड. दिस इज द डेडिकेटेड मिनिस्ट्री. नाउ लेट मी कम टू दिस स्लाइड. ये कुछ पर्टिकुलर रोल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कुछ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, कि अगले आने वाले कुछ सालों में किन एरियाज में बहुत ज्यादा स्किल की डिमांड है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का प्रोफेशन है फॉर इंडिया. यदि हम इस वेबसाइट पे जाएं, आप किस कंट्री में किस टाइप के जॉब रोल्स हैं, अगले 5 सालों में कौन कौन से एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना है, उन एम्प्लॉयमेंट, उन एरियाज के बारे में जान के उनसे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास, दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय योजना, ये आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखाए थे. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, HP स्किल्स, टाटा, उन कोर्सेज को आप करके इट इंक्रीजेज योर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इट इंक्रीजेज योर एम्प्लॉयबिलिटी. यदि आप वही काम करें जो आगे लग रहा है. व्हाट इज फोरकास्ट? वेदर फोरकास्ट होता है. फोरकास्ट क्या होता है कि अगले कुछ समय में बहुत ज्यादा स्टॉर्म आने की संभावना है. आज इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, वर्ल्ड हैज एडवांस सो मच. आप देख रहे होंगे फोरकास्ट का एक्यूरेसी कितना बढ़ गया है. पहले टाइम में कुछ और था, मे बी पीपल यूज्ड टू से इन अ लाइटर वे, जिस दिन रेन बोला जाए उस दिन ऑपोजिट होता है. बट टुडे द टाइम्स हैव चेंज्ड. So in education, in skill development, in the job market, what is the forecast? पिछले स्लाइड्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स दिखाई थी. सॉफ्ट स्किल्स मैंने आपको बताया था which is non academic, interpersonal skills, communication skills. यहाँ पे what are the technical skills? Sales, marketing, information technology, engineering,
accounting and finance, healthcare, hospitality, professional, freelance professionals, management, skilled trades, plumbing, technician, any kind of like something to do with some kind of a movie making, teachers, education. नो ये सारे एरियाज हैं जिसमें इंडिया में अगले आगे सालों में बहुत ज्यादा डिमांड है. अभी आप यदि यहाँ देख रहे हैं जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वहां पे मैं लिखूं लंदन, वहां पे मैं लिखूं यूएस, वहां पे मैं लिखूं बांग्लादेश, वहां मैं लिखूं थाईलैंड, उस कंट्री में अगले आगे सालों में क्या क्या स्कोप है, किन किन एरियाज में पोटेंशियल है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन एक्वायर द स्किल्स. आई हैव टोल्ड यू द इंटरनेशनल साइट्स, नेशनल साइट्स. नो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नीचे देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इंटरनेशनल कैरियर मोबिलिटी, जॉब्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. You can be a student entrepreneur, you can be a employee entrepreneur, you can be a business entrepreneur. Entrepreneur means enterprising. आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आप 5वां सेशन भी अटेंड कर रहे हैं. That shows your sincerity, that you want to acquire information. No, इस स्लाइड से what I'm trying to convey you, ये स्लाइड कुछ I have prepared in a short span of time. अगर आप सबसे नीचे देखें, I have mentioned certain cities, आगरा, अमेठी, लखनऊ, बिजनौर, कांचीपुरम, वाइजैक. नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं जिसको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं हम. आपका मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है. उसके ऊपर हमने आए हैं मेट्रोस पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, मैसूर. नाउ व्हाट इज द लॉजिक आई विल टेल यू, बट आई एम शोइंग यू. सबसे नीचे हमने जो छोटे छोटे शहर हैं उसके ऊपर हमने मेट्रोस का नाम लिखा. अब हम ऊपर थोड़ा जाते हैं. मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट क्वाइट नियर टू इंडिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, टर्की, इजिप्ट, ईस्टर्न यूरोप. एक आपका नॉर्थ यूरोप है, एक ईस्टर्न यूरोप है, स्लोवाकिया, रशिया. अब थोड़ा और उससे ऊपर जाते हैं. अफ्रीका, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड. ये बहुत सी कंट्रीज डेवलपिंग हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं. अब हम सबसे टॉप पे जाते हैं. यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन के अंदर 25-26 कंट्रीज आती हैं. एस्टोनिया. सो और व्हाई दिस स्लाइड इज देयर. और सबसे नीचे हमने लिखा है इंटरनेशनल कैरियर मोबिलिटी. अब थोड़ा ध्यान से आप इसको सुनिएगा. अभी हम कई बारी बात करते हैं कि बहुत से लोग गांव से शहर में आते हैं. हमने पिछले स्लाइड्स में क्या बात की थी, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको लगता है कि शहरों में मार्केटिंग का स्कोप लिमिटेड है, रूरल मार्केटिंग या कुछ मैंने कॉमन सर्विस सेंटर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो आप अपने लोकल एरिया में कर सकते हैं. लेकिन इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस करने के लिए, आपने ट्रेडिंग करना है, सर्विसेज का काम करना है, यू हैव टू मैन्युफैक्चर समथिंग. So I'll request all those participants who has, everybody has certain advantages. जैसे आपका जो CV है, आपका बायोडाटा है, एक कंपनी का भी बायोडाटा होता है. आप एक प्रोडक्ट को जब मार्केट से लेते हैं, सुपर मार्केट से, यू सी उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है. कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो कितना ड्यूरेबल है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत चीजें मैटर करती हैं. इसी तरीके से यू हैव टू ब्रांड योरसेल्फ. टुडे इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, आपके सीवी में क्या स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. कुछ जॉब्स हैं जहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई रोल नहीं है, वहां पे सिर्फ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. कुछ जगह हैं जहां पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहां पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है. सो नेवर फील दैट देयर इज समथिंग नॉट देयर इन योर सीवी. देयर मे बी समथिंग, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस एरिया में आपका एप्टीट्यूड है. अगेन स्किल असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट. यहाँ पे वी विल डू, जो भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं, वी विल डू अ असेसमेंट फॉर यू. आपको बता सके कि इस एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो ऐसा स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज हो, या जॉब मार्केट में उसको करने के लिए कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं, कहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, people who have some good communication skills, who are good at English skills, technical skills हैं, try to look global. अगर जितने लोग हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हेल्थ केयर बैकग्राउंड है, इफ एवरीबडी कीप्स ऑन लुकिंग फॉर जॉब इन चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, देन व्हाट विल हैपन. जो और लोग हैं, अगर लिमिटेड जॉब्स हैं, 10 जॉब में से अगर 4 लोग उन्हीं 10 जॉब के लिए रहते हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द पॉसिबिलिटी फॉर अदर्स. कुछ लोग इंटरनेशनल मूव करें ताकि यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होती है वो औरों को जॉब अप्लाई करने में मदद करे.
इट्स अ वेरी न्यू इनिशिएटिव आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप इसको समझ सकें। कुछ लोग बाहर मूव करें क्योंकि वर्ल्ड इज अ कनेक्टेड प्लेस। नाउ एग्जांपल, कनाडा जैसी कंट्री में इन अनदर 10 years देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स। 4 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट की कुछ प्रोजेक्शन है, उनको बहुत सारे इमिग्रेंट्स चाहिए। तो आप में से जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, इफ यू हैव अ सीवी जो कैनेडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, और मैं आपके सीवीओ को काफियों को देखा है, आपके यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन यू रिक्वायर गाइडेंस। ऐसी ऑस्ट्रेलिया में पेंटर, कारपेंटर, हर तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसमें यू डोंट नीड टू हैव गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यू नीड टू नो योर ट्रेड, आपका पेंटिंग स्किल्स, कारपेंटिंग स्किल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। यूरोपियन कंट्रीज में केयर गिवर्स, वहां बड़ी सीनियर पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ, लेकिन बहुत से लोग हैं उनको हाउ टू अप्लाई ओवरसीज, हाउ टू गो ओवरसीज। तभी गवर्नमेंट ने भी इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर क्रिएट किए, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इफ यू वांट टू हेल्प योर कंट्रीमैन, कुछ लोग अगर इंडिया से माइग्रेट करते हैं तो जो यहाँ पे जॉब्स लेफ्ट हैं उनमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो शायद यहाँ के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। लेकिन अगर सारे लोग ही एक जगह रहेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज, जो कंट्रीज इनवाइट कर रही हैं, कनाडा इन पर्टिकुलर, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों से देखता हूं, वो पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, दे डोंट नो एबीसी ऑफ वीजा, उनको इंग्लिश क्या, उनके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उन चीजों से उनको दूर कैसे रखा जाए। बहुत लोग अपनी हार्ड अर्न, अपनी सेविंग्स को इन वीजा बहुत सारे इश्यूज में कर देते हैं, लूज कर देते हैं। हियर वी आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म इन एन एथिकल वे, हाउ वी कैन हेल्प यू टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। सो प्लीज लुक एट दिस ऑप्शन, मिडल ईस्ट, यूएस, अफ्रीका, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। ये चीजें सिर्फ कुछ सर्टेन सेगमेंट के लिए हम लिमिटेड नहीं रख सकते। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। इन माय ओन टाइम आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स लेटर इन लाइफ, लेकिन आज इफ आई लुक बैक इन माय लाइफ, शायद किसी ने उस वक्त ये बता दिया होता, इट कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट फॉर मी आल्सो। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज लुक ग्लोबल। There are countries who are looking for skilled professionals, और आप ही में से बहुत लोगों के बायोडाटा हैं जो मैंने देखे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बट दे नीड गाइडेंस, दे नीड मेंटरिंग। यहाँ पे जो जॉब क्रिएट होगा, जो आप माइग्रेट करेंगे, many other people can take up that jobs. So you are helping yourself, you are helping others also. That's why I'm laying a lot of stress on this. उसी से रिलेटेड इमिग्रेशन एंड सिटीजन, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ इसलिए पिकअप किया है क्योंकि इसमें बहुत फ्रॉड होते हैं। देयर आर मेनी एजेंट्स जो आपको प्रॉमिस करते हैं, लेकिन अब उस एजेंट से आप अपने को अवॉइड कर सकते हैं। इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए हाउ टू अप्लाई फॉर अमेरिका, दिस कैनेडियन इमिग्रेशन, बहुत सारे हमारे पंजाब के फार्मर्स हैं, जबकि आपको तो बल्कि मोटिवेट होना चाहिए। आज यूट्यूब पे आप देखेंगे, यू हैव अ मच मोर बेटर क्रेडेंशियल्स, आप आजकल की जनरेशन है, आपके पास स्किल्स हैं, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गोइंग देयर, और यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ फॉर्चून, you don't need to get into some kind of wrong agents. So government of Canada का ये official platform है, there are many programs on Canadian government। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ तो आप इसलिए सुनते होंगे कि everybody wants to go to Canada, that is not okay। वहां पे क्या प्रोग्राम्स हैं, कहाँ पे किस चीज की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको शेफ चाहिए, कहीं पे आपको कुक चाहिए, या वहां पे यू डोंट रिक्वायर वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो ऐसी ऑस्ट्रेलिया है, various countries are there. So I am giving you one example because Canada government का अगले 10 सालों के लिए बहुत ज्यादा requirement है immigrants का। I'll invite all the participants to be in touch with us, and if you are interested, we can help that process. Now let us move further. 2 slides मैं आपको YouTube चैनल के दिखा रहा हूँ so that it motivates you. एक आप नाम देख रहे हैं इस पे, लंदन की लाली, if you have seen this, a very popular YouTube channel. Now why I am showing you these 2 YouTube channels? दूसरा है मायो जापान, I am repeating the names, लंदन की लाली, and दूसरा है जापान, मायो जापान। Now what is the objective? जो ये पहला है लंदन की लाली, this is a UK citizen। ये जो महिला है ये यूके की सिटीजन है। इन्होंने हिंदी को सीखा, हिंदी को सीखने के बाद इन्होंने बहुत सारे अपने YouTube के जो वीडियोस हैं हिंदी रिलेटेड, इंडिया रिलेटेड बनाए हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बीइंग अ यूके नेशनल, शी टुक एन इनिशिएटिव, उन्होंने एंटरप्राइज इनिशिएटिव दिखाया कि मैं हिंदी सीखती हूँ,
बहुत लोग फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, but already settled in an advanced country, in a developed country, she got out of her comfort zone. और आप यदि देखें, her channel is very popular. Second, Mayo Japan. Again, Japan is a very developed country. She could have done many other languages, but she took an initiative, and she is of your age group. She is under 28. 25-26 is around her age. She learned Hindi, and she created a lot of. Now she is providing online coaching classes to learn Japan and also in Hindi. कि यदि कोई और हिंदी सीखना चाहता है, कोई फॉरेनर है, उसको हिंदी में इंटरेस्ट है, इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट है, शी इज हेल्पिंग देम. सो एक आपका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं, यू कैन बी अ ग्रेट सक्सेस अराउंड दैट. नाउ लेट अस मूव फर्दर. व्हाई आई एम दिस अनदर स्लाइड इज देयर, योर बॉडी योर सिस्टम. आई कुड हैव शोन यू स्लाइड अ लिटिल लेटर. आयुर्वेदा रिलेटेड, अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. एलोपैथी एक ब्रांच होता है और एक आयुर्वेदा ब्रांच होता है, आयुष ब्रांच होता है. योर बॉडी योर सिस्टम यदि आप गूगल करते हैं, दिस इज अ वेबसाइट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय एन इंडियन who is settled in US, very highly talented, highly educated. He did his PhD, 4 degrees, but he has created a very good unique software कि आप बिना किसी हॉस्पिटल, बिना किसी क्लिनिक, थ्रू सिस्टम, जो आपके इसमें कुछ उन्होंने क्वेश्चनर क्रिएट किए हैं. और ये आपको मैं इसलिए स्लाइड दिखा रहा हूं ताकि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें. न्यू वर्ल्ड में क्या क्या हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अपने इस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चनर क्रिएट किए हैं जिसमें उन्होंने आपके सिम्टम्स पूछे हैं, एनोनिमस, उसको आप फिलअप करें. उसके बेसिस में वो आपका आयुर्वेदा का क्वेश्चंस बताएंगे. आप काफा प्रवृत्ति के हैं, जो भी आपका आयुर्वेदा का प्रवृत्ति है, एंड उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेड मेडिसिन हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या योगा हैं. अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट एंड हाउ आवर ओन मेडिकल सिस्टम कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड इंटरनेशनली. इसका एक बहुत नॉमिनल चार्ज उन्होंने रखा है, फ्रॉम $5 to $20 फॉर इंडियन नेशनल्स, and you can as per your interest you can participate in it. I'm showing you your body your system. इसी तरीके के वेबसाइट से कुछ आप इंडिया में प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, बट अ वेरी गुड एंड रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ आयुष, मोर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम. नाउ कमिंग बैक टू द लैंग्वेज, स्पीकली करके एक वेबसाइट है और कुछ मेरे पास बायोडाटा भी हैं जहां मुझे बड़ा अच्छा लगा. बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने कुछ एक एडिशनल लैंग्वेज को सीखा है, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश के जर्मन, फ्रेंच. और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, ट्राई टू लर्न एन एडिशनल इंडियन लैंग्वेज. इट कैन बी मलयालम, इट कैन बी नॉर्थ ईस्ट, इट कैन बी एनी अदर, इट कैन बी बंगाली, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, जो भी एडिशनल लैंग्वेज आप कर सकते हैं. व्हाई आई एम टेलिंग यू, देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स जो दिल्ली के हैं जिनको साउथ में काम करना है, या यदि आप जॉब के लिए साउथ में जाते हैं, या जो आप अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम साउथ में शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में शुरू करते हैं, अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू, you can connect with the people. There are many people in every state of India, they don't speak English, they are not comfortable with Hindi. You can learn their local language. अगर आपको उनके एरिया में काम करना है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में there are 7 states in north east, अरुणाचल, मध्य, you have मणिपुर, मेघालय, असम. बहुत पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसका काम ही सिर्फ ये है नॉर्थ ईस्ट में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन किया जाए. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. ऐसी जगह पे अपना काम शुरू करें, ऐसी जगह पे जॉब देखें जहां पे क्राउड कम है, क्राउडिंग कम है. यदि आप एक सर्टेन एरिया में ही देखते रहेंगे जहां ऑलरेडी बहुत सैचुरेशन है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यू आर डिक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ सक्सेस. आज बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटीसी, टाटा, ये रूरल मार्केटिंग में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रूरल एरिया में उनको लगा यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज को लगा रूरल एरिया में बहुत पोटेंशियल है. आज स्मार्टफोन की वजह से मेनी पीपल इन द रूरल एरिया आर एबल टू पार्टिसिपेट इन सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम. लेकिन अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां रूरल एरिया नहीं गई होती, क्या लोगों के पास स्मार्टफोन होते? सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू. चाहे इंडिया के बाहर, ट्राई टू लुक फॉर सम कंट्रीज, बर्मा, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस. सो सेम वे इन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ऐसे एरियाज में जहां अभी पोटेंशियल बहुत है, लर्न देयर लोकल लैंग्वेज.
लर्न देयर लोकल लैंग्वेज, तो कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए, कोई सीखने वाला भी होना चाहिए। यही तभी मैंने आपको 2 स्लाइड दिखाए। दोनों कंट्रीज लंदन और जापान डेवलप्ड हैं, लेकिन उनके दोनों नेशनल्स हैं, इन्होंने हिंदी को सीखना प्रेफर किया। वही चीज मैं अब आपको मोटिवेट कर रहा हूं, लर्न एन एडिशनल लैंग्वेज। फॉर इमिग्रेटिंग टू अब्रॉड, लाइक फॉर कैनेडियन, यू रिक्वायर गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। कहां से सीखें उसको? आई एम गिविंग यू सर्टेन स्लाइड, सर्टेन एग्जांपल। लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेटर्स आर रिक्वायर्ड। आज बड़े बड़े बिजनेसेस को काम करना है इंडिया में या आपको जापान में काम करना है, यू रिक्वायर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इटसेल्फ इज अ ह्यूज एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉय, और यदि आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। सो स्पीकली इज अ वेबसाइट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन। Very good website, very popular website and having a huge potential for learning any language. ये जो लैंग्वेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, यदि आप में से कुछ लोग इंटरनेशनल करियर की तरफ देखना चाह रहे हैं, जो मैं आपको खुद एनकरेज करना चाह रहा हूँ, विच इज गुड, क्योंकि आप माइग्रेट करते हैं, आप यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं और लोगों के लिए, ताकि वो इंडिया में जॉब टेकअप कर सकें। सो बाहर जाने के लिए विच आर द पॉपुलर लैंग्वेजेस? इंग्लिश, यस, स्पेनिश, French, German and Italian. Very important. Today you can do them online. We can help you in that process. You can yourself become a teacher. So first you learn it. बहुत से लोग कहते हैं हमें घर से कुछ काम करना है. You become a language teacher. कैसे बन सकता है? I'll show you one slide. Selpip. This is a very good English language course. If any one of you is looking for immigrating to Canada. Now Canada, I'm telling you why. क्योंकि कैनेडियन एक ऐसी गवर्नमेंट है वर्ल्ड ओवर जो ओपनली इनवाइट कर रही है इमिग्रेंट्स को। बहुत सी कंट्रीज हैं, दे आर सेइंग वी आर नॉट वेलकमिंग मोर इमिग्रेंट्स, ऑलरेडी वी हैव टू मेनी इमिग्रेंट्स। कुछ कंट्रीज अपने वीजा प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रही हैं, यूएस इंक्लूडेड। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जहां पे पॉपुलेशन कम है एंड दे हैव रिक्वायरमेंट फॉर शेफ, दे हैव रिक्वायरमेंट फॉर प्लम्बर, दे हैव रिक्वायरमेंट फॉर अ टीचर, दे हैव रिक्वायरमेंट फॉर अ कॉलेज टीचर, स्कूल टीचर, दे हैव for paramedics, for doctors, for engineers, for accountants, for any kind of profile, okay, for digital marketing, for export import, entrepreneurs. इन कंट्रीज में कुछ एंटरप्रेन्योर संबंधित वीजा भी हैं कि यदि आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, आप उस कंट्री में उस आइडिया को करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप उस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। So they will give you an entrepreneurship visa. How to apply for an entrepreneurship visa? This is what we are helping you out. So CELPIP. CELPIP is a certification in English language for immigrating to Canada. दूसरी चीज, यदि आप immigrate नहीं भी करना चाहते, you are looking for a job in India with Tata Consultancy, Bank of America, American Express, GE Capital. Today communication skills are very important in multinationals. यदि आप ये certifications करते हैं, आपके बायोडाटा को ये वैसे भी इंप्रूव करते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे अबाउट ब्रांडिंग। सो सेल्पिप इज अ वेरी गुड सोर्स। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फ्री रिसोर्सेज, आप बहुत सारे फ्री इंफॉर्मेशन अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। और यदि आप सर्टिफाई करना चाहते हैं, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फी टू द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एंड देन यू कैन गेट सर्टिफाइड। द मोमेंट यू गेट सर्टिफाइड, जो आपका वीजा प्रोसेस है, इट हेल्प्स यू। सो इन टुडेज सेशन आई एम लेइंग अ लॉट ऑफ फोकस on skill development, on jobs, on entrepreneurship opportunities, not only in India but globally. ऐसी French language in Canadian, for the Canadian immigrants, the Canadian government यदि English speaking skills अच्छी हैं या French skills अच्छी हैं, कनाडा में there are certain areas जहाँ पे French बोली जाती है। So आप में से कई participants हैं, if you are looking for immigrating, जो मैं खुद आपको encourage करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है, वहां डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। Why not to look international from a lifestyle, from a money point of view, from a good career point of view, from every perspective. So if you have a French language skill, या नहीं है तो आप कहां से सीख सकते हैं, जो मैंने आपको पहला वेबसाइट दिखाया। Acquire these skills and you can apply। आपका वीजा एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाता है। आप जनरली सुनते होंगे वीजा में स्कोरिंग होता है, कितना स्कोर आपका है, उस स्कोर को कैसे अच्छा करें। At a young age, proper guidance is not there, and when you get to know, at times it is quite late. So at your young age, maybe mid-career, whatever like background you have, we are telling you the information sources. So this session is not about national, international, it is about global opportunities. We move further. TOEFL.
टोफल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, वेरी पॉपुलर। सो यदि आपको इंडियन कंपनीज में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, होटल इंडस्ट्री में काम करना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना है, जहां पे बहुत ज्यादा फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन है। नाउ लेट मी से एन इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल टूरिज्म पे बहुत एम्फोसिस कर रही है। मेडिकल टूरिज्म मींस व्हाट? बाहर के लोग इंडिया में आके अपना इलाज कराएं, इट कम्स चीप, उनकी कंट्री से मे बी द कॉस्ट इज लेस, लेकिन कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार वेटिंग टाइम कम होता है। बाहर की कंट्रीज में टू गेट अ पर्टिकुलर सर्जरी देयर इज अ वेटिंग टाइम। कुछ लोग शायद इतना वेट करना नहीं चाहते, सो दे प्रेफर टू कम टू इंडिया। यहाँ पे द कॉस्ट इज कम एंड स्किल्स भी आपको मिल रही हैं। सो हाउ टू इंटरेक्ट विद द फॉरेन लाइक मेडिकल टूरिस्ट, या जो इंडिया में राजस्थान, आगरा, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू, साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया हैज लॉट मेनी टूरिस्ट पोटेंशियल, लेकिन वो भी फुल्ली टैप्ड नहीं है। सो टूरिज्म के लिए लाइक इंडिया, आपने भी सुना भी होगा, इंडिया दर्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस फ्रॉम द गवर्नमेंट हाउ टू पार्टिसिपेट इन दैट। सो टोफल इज आल्सो वन ऑफ द स्कीम जहां से आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। लेट अस मूव फर्दर। IELTS again for any person looking for higher education in international universities. Again, let me take an example of like London. UK has a lot of programs. US has a lot of programs for masters. I will encourage many of you, if you are looking for a master study or maybe a bachelor study, 10+2 के बाद मेरे पास क्या opportunities हैं? Don't think only limited. Have a global viewpoint. So IELTS, TOEFL, ये आपको प्लेटफॉर्म्स देते हैं टू अप्लाई इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आपको लगता होगा एजुकेशन की कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन अगेन आई वांट टू टेल यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, विद्या लक्ष्मी लोन करके स्कीम है, एजुकेशन लोन करके स्कीम है। बजट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था बहुत ही रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको एजुकेशन लोन मिलते हैं, चाहे आपको इंडिया में स्टडी करनी हो या इंटरनेशनल करनी हो। नेवर थिंक कि मेरे पास शायद रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैं शायद बाहर नहीं जा सकती या जा सकता। प्लीज बी इन टच विद अस, मेक यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप सेल। वी वांट टू मेक यू एन इंटरनेशनल प्रोफाइल जिनमें जैसा पोटेंशियल है, जैसा इंटरेस्ट है। कुछ लोगों के पास पोटेंशियल है लेकिन उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों के पास बारे में स्किल्स हैं, उनको कहां पे यूज कर सकते डोंट नो। सो आई एम टेलिंग यू, प्लीज लुक फॉर लैंग्वेज स्किल्स, और लैंग्वेज स्किल्स को ना सिर्फ सीखें, गेट सर्टिफाइड। सो IELTS, TOEFL, फ्रेंच लैंग्वेज, सेलपिप, स्पीकली, आई हैव गिवन यू सो मेनी ऑप्शंस। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते हैं, चाहे आपको इंडिया में जॉब लेना हो या यदि आपने बाहर जाना हो। लेकिन यदि आप ये टाइमली कर लेते हैं, सो इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर व्हाट टू डू फ्रॉम वेयर, सो आई विल एडवाइज यू, दिस आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देन द GMAT एग्जाम, वेरी पॉपुलर। इफ यू वांट टू परस्यू योर MBA ओवरसीज, विद्या लक्ष्मी लोन, education loan from the government of India, Delhi government, Karnataka government, Manipur government, every government has education loan schemes for the government, and you will be surprised many times people are not aware या वो उसमें apply नहीं कर पाते हैं क्योंकि they are lengthy forms, sometimes at a young age आपको लगता है how to fill them. We will fill them on behalf of you, but you have to come forward, you have to take initiative. So GMAT, Graduate Management Aptitude Test, ग्रेजुएट रिसर्च एग्जामिनेशन, GRE, GMAT, और आपको शायद थोड़ा मालूम होगा या मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी जो नवरत्नास हैं, NTPC, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यदि आप इनकी वैकेंसीज को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर को यदि आप देखते हैं, उसमें आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, उसमें लिखा होता है ऑयल, NTPC, गेल, कि यदि आपने GMAT, आपने GRE पेपर पास किया है, आपने गेट पेपर पास किया है, देन दैट इज गिवन अ वेटेज इन योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्लोबल। गेल हो गया, आपका ऑयल एंड गैस ONGC हो गया, जगह जगह ONGC के ऑफशोर ड्रिल्स हैं। ऑफशोर ड्रिल्स क्या होते हैं? समुद्र में से पेट्रोल निकालना। तो ओमान में, मिडल ईस्ट में जगह जगह इनके ब्रांच ऑफिसेज हैं। So they are looking for international talent and they are recognizing international qualification.
Similarly, in the medical profession, in the accounting profession, if you have done some foreign medical education, you have to give a recognition test, a conversion test in India by the Medical Council of India, and then you're good to practice in India. So this is the advantage. Today we are a global world. How to participate in the GMAT exam? Again, very important. नीचे आप देख, there are many fraudster also. आज जब कहते हैं ना नई इकोनॉमी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें फ्रॉडस्टर्स भी आ जाते हैं. बहुत से लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं. देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी फैकल्टी नहीं है, ट्रेनिंग मटेरियल नहीं है, वहां पे वेबसाइट अच्छा बनाया, बहुत अच्छा अपने ब्रोशर्स बनाए, आपको एनरोल कराया एट अ ह्यूज फीस, एंड देन यू गेट टू नो क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट देयर, या आपको जो फैकल्टी टाइम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है. एक दफे आपका एडमिशन हो गया, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो टाइमली रिजॉल्व नहीं होते. आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी दिया, लेकिन उसके बाद भी यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस. सो हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली, आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड स्मार्टली, how to prepare smartly for these global examination so that you can have a global career. This is also we are taking up as an initiative here to provide you access to international education. GMAT hai. Again ACT, American College Testing Scholastic Aptitude Test, जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं या जो भी 10th में हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, बहुत से they keep on getting in touch with me how to go to for an undergraduate degree. जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप मैसूर यूनिवर्सिटी जाते हैं, after 10+2 there are many opportunities. If you want to go overseas, ACT, American College Testing, SAT, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं and they are not difficult. Simple syllabus है, it is all about coaching, it is all about smartness, सिंपल बुक, सिंपल करिकुलम, जो कि इंडिया के कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करता है. बट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू अप्लाई इन द ACT, SAT, राइट नाउ इट्स द राइट टाइम. जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर में, ACT, SAT, दिस हेल्प्स यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर इफ यू वांट टू लुक फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन. द गवर्नमेंट इज गिविंग यू द फंडिंग आल्सो फॉर दैट. ये अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन इन रीसेंट ईयर्स टू रशिया. व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एग्जांपल? ग्लोबल एजुकेशन, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, the honorable prime minister has gone to this university in Russia. He has delivered a lecture there because there are many Indian students who are studying in this university in Russia. But how to participate in this? There's an MOU between the two university, between the two governments, Ministry of HRD and the relevant concerned ministry in Russia. So you can have global education. There are limited seats in Delhi, there are limited seats in India. How to increase your chances? There are many students, I am talking very practical, never feel like in any way that आपके कुछ scores कम हैं, आप में कोई competence कम है. I told you gradually what is happening, round the year assessment होगा, open book examination. What is the system today? At the end of the year, in a 3 hour you are evaluated. There has to be a round the year assessment. Gradually we are moving towards that direction. So don't think that you are not able to secure admission at a particular place. Maybe something better is there for you. So look global, and this is where we are helping you out. So University of Iceland, this is a very good example I am giving you. हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड गए थे, यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन में है. दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बाहर की यूनिवर्सिटीज में स्पेशली इन द यूरोपियन यूनियन, यूरोप में देयर इज नो ट्यूशन फीस. जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में जो सबसे हैवी एक्सपेंसेस होते हैं ट्यूशन फीस का होता है. और यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड आई हैव टेकन अप एज एन एग्जांपल, देयर इज नो ट्यूशन फीस, and then in a very nominal 3 to 4 lakh rupees, less than 10 lakh rupees, you can have a very good education, a very good career. जो remaining amount है 3 lakh, 4 lakh, 2 lakh, you can take a Vidya Lakshmi loan from the government of India. But look global, US में there is tuition fees, but in the European universities, many of the university doesn't have a tuition fees. And you will see जो इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स की, पीजी कोर्स की कॉस्ट है, यू विल सी द कॉस्ट परसुइंग अ पीजी कोर्स, अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अ प्रोफेशनल कोर्स, अ एमबीए कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड इज ईदर लेस और इज ईदर इक्विवेलेंट. सो प्लीज लुक ग्लोबल. ओके, लेट अस मूव फर्दर. नाउ कैम्बली. कैम्बली इज एन एग्जांपल जहां पे आप लैंग्वेज स्किल्स को सीखकर
अपने लिए घर बैठे बैठे एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क फ्रॉम होम, या कुछ वो फुल टाइम जॉब करते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। कैमली इज व्हाट? देयर आर मेनी हाउसवाइव्स, होम मेकर्स, मेल फीमेल्स इन कनाडा, इन यूरोप, इन अमेरिका। उनको पता है बहुत से लोग उनकी कंट्री में इमिग्रेट करना चाहते हैं, उनको लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने IELTS का टेस्ट देना है, टोफल का टेस्ट देना है, आपके वीजा एप्लीकेशन में अच्छी लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए। तो इन कंट्रीज के जो घर पे लोग थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हम जो फॉरेनर्स कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं उनको लैंग्वेज स्किल्स में हेल्प करें, उनको लोकल कल्चर के जानने के बारे में हेल्प करें, उनको इमिग्रेशन के प्रोसेस में हेल्प करें। उसके बेसिस पे दे प्रोवाइड यू 1 आवर 2 आवर ऑफ कोचिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ लैंग्वेज टेस्ट, IELTS के लिए कैसे प्रिपेयर करें, आपको मॉक सिचुएशंस दी जाती हैं, उसके लिए वो एक प्रोफेशनल नॉमिनल फीस लेते हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कैन क्रिएट अ सिमिलर एप्लीकेशन हियर। किसी को मलयालम सीखना है, किसी को तमिल सीखना है, किसी को संस्कृत सीखनी है, you can create these kind of opportunities through your YouTube channel and you can earn an income। आपके ये लिए एक ये एडिशनल इनकम है। जैसे इंडिया से बहुत से लोग बाहर जाते हैं, ऐसी देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका ये जो एक सुपर फास्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ जापान गवर्नमेंट के साथ, ऐसे इंडिया के भी अंदर देयर आर मेनी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। जो वहां के लोग इंडिया में आते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, या जो एम्बेसीज में काम करते हैं, फॉरेन मिशंस में काम करते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आता। यदि उनको लोकल लैंग्वेज की स्किल्स कोई सिखा दे, दिस इज वेयर योर अपॉर्चुनिटी कम्स इन। यू डोंट नो इंग्लिश, आपको हिंदी बड़ी अच्छी आती है, आप उन लोगों को हिंदी सिखा सकते हैं। उनको हिंदी सीखना इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल US एम्बेसी में देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम पंजाब हु वांट्स टू माइग्रेट टू US और टू कनाडा। अब दे डोंट नो इंग्लिश, लेकिन US वीजा सेक्शन में टुडे देयर इज अ फैसिलिटी। यदि आपने मराठी में बात करनी है, आपने बांग्ला में बात करनी है, यदि आपने हिंदी में बात करनी है, देयर आर लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स सिमिलरली इन द कैनेडियन कॉन्सुलेट। लेकिन वो स्किल्स आती कहां से है? वो स्किल आप ही के बीच में से आती है। लेकिन दैट इंफॉर्मेशन वी आर टेलिंग यू, सो यू कैन क्रिएट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ। नाउ दिस स्लाइड आई एम शोइंग यू, ये आप एक अपने स्लाइड पे देख रहे हैं, खोमचा वाला सड़क पे ही इज प्रिपेयरिंग सम स्नैक्स। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू, in today's time after this coronavirus there are many guidelines which have come, दस्ताने पहनने, और चलो हम कोरोना वायरस से भी पहले जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की गाइडलाइंस हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो एक हाइजीन, उन्होंने साफ सफाई रखी है, उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, कैप लगाई है, बेसिक हाइजीन। उससे क्या होता है, आपके कस्टमर इंक्रीज होते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु लुक फॉर हाइजीन। जैसे आप एक बार्बर शॉप पे जाते हैं, कुछ लोगों के लिए हाइजीन बड़ा मैटर करती है कि कितनी सफाई है। बार्बर तो हर टाइप के होते हैं, ऐसे ढाबे भी सब टाइप के होते हैं। यू गेट अ रोटी इन 5-star होटल ऑल्सो, यू गेट अ रोटी इन अ ढाबा ऑल्सो। लेकिन सम पीपल प्रेफर टू गो टू अ 5 star, सम पीपल, कोई लोग दिल्ली से आपका उत्तराखंड जा रहा है, कोई दिल्ली से आपका उत्तर प्रदेश जा रहा है, रोड साइड ढाबास। सो क्या सिचुएशन है वहां पे? अगर आपको अपनी क्लाइंटेल इंक्रीज करनी है, यू नीड टू शो हाइजीन। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम FSSAI कहते हैं, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। लेकिन बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। वहां से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि मुझे हाइजीन आपको बिजनेस में हेल्प करेगी, लेकिन यदि आपने अपने छोटे मोटे स्ट्रीट बिजनेस को इंक्रीज करना है, आपका कोई जूस का शॉप है, आपका कोई स्नैक्स का शॉप है, चाय की दुकान है, छोटा मोटा आपका स्ट्रीट साइड कोई शॉप है, कैसे आप मेन स्ट्रीम के सिस्टम से, बहुत से लोग इंडिया में हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाते। व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट? दे डोंट हैव एनी गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, उनके पास कोई रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पे बहुत से जो लोग आज सुन रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप उन तक पहुंचा सकते हैं और उनसे इसका एक सर्विस चार्ज, नॉमिनल फीस ले सकते हैं। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू, क्योंकि आप उनकी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, आप उनकी लाइवलीहुड का सोर्स बढ़ा रहे हैं, आप उनकी लाइफ को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। आज जो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख रहे हैं, जो भी उसकी एक स्टॉल पे इक्विपमेंट है, कढ़ाई है, जो भी उसके बर्तन है, शायद वो उनको ज्यादा हाइजीनिक वे में यूज कर सकता है, उनसे अच्छी इक्विपमेंट ले सकता है। लेकिन उसको मुद्रा स्कीम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है उसमें, 10,000 का
50,000 के छोटे छोटे लोन मिलते हैं, वो कैसे अप्लाई करें? somebody has to take that initiative. जूस का ये मैं स्लाइड आपको अगेन दिखाना चाह रहा हूँ। जूस की बड़ी सारी शॉप्स होती हैं। अभी हम बहुत ज्यादा, एक गर्म मौसम है, गर्मी का टाइम है, आप देखते होंगे जगह जगह देर आर गन्ने का जूस, बट इज देयर एनी हाइजीन इन दैट? शिकंजी आप देखते होंगे। व्हाई आई एम टेलिंग यू दीस स्मॉल थिंग्स? हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर मेनी पीपल, आप देखिए जूस को, एक ये एंटरप्रेन्योर है, यूएस का एंटरप्रेन्योर है, ये इंडिया में भी कुछ कंपनीज आई हैं और उनका बहुत सेल भी हो रहा है। बड़े बड़े होटल्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, देर आर अ गुड रिक्वायरमेंट फॉर पीपल। हॉस्टल्स में दे प्रेफर क्वालिटी, और क्वालिटी एक दूसरे तरीके से भी अच्छा है। एक है कि आप शुरू में सस्ती चीज ले लें, फिर आप बीमार पड़ें, बीमार पड़ने के बाद आप जो इलाज पे खर्चा करें। दूसरी चीज, आप पहले बीमारी मत पड़िए। सो व्हाट यू टेक इनटू योर बॉडी डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर हेल्थ। एक आपका खर्चा ही नहीं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, योर स्टडी विल गेट इंपैक्टेड, your focus will get impacted. So why not to take quality in yourself? So there are entrepreneurs who are required, who can create good entrepreneur businesses around quality. India में there is a huge scope. दिल्ली में, बॉम्बे, go beyond दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, आगरा, बिजनौर, छोटे छोटे शहर, टूरिस्ट प्लेसेस आप देखेंगे, मथुरा, वहां पे बड़े सारे स्ट्रीट साइड वेंडर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, अगर उनको कोई बताए, उनको कोई हेल्प करे, that will increase lot of income for them and you can be a partner in them. You can yourself become an entrepreneur. या आप एक किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पे मथुरा में, आगरा में आप उसको वहां पे एक सेटअप करके दे सकते हैं। he or she can give you a monthly income. Let him operate that person. आपने लोकल जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, आप दिल्ली में है, बॉम्बे में है, मैसूर में, आप फुल टाइम जॉब में, यू आर क्रिएटिंग एन इनकम फॉर योर सेल्फ। सो इट्स, और इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। लेकिन हाउ टू एक्सेस दैट? सोलर, आजकल कार्ड्स आते हैं जिसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, उसमें आप बल्ब जला सकते हैं। अपना आइसक्रीम का जो आपका कार्ट है, उसमें आप आइसक्रीम को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। जूस मैंने आपको इसलिए दिखाया बिकॉज देयर आर ह्यूज क्वालिटी इश्यूज, हाइजीन इश्यूज अराउंड जूस इन मेट्रो, इन स्मॉल सिटीज। गर्मी में देयर इज अ ह्यूज डिमांड बट क्वालिटी इज नॉट देयर। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आई एम शोइंग यू। Let us move further. Okay, now a very important slide on the skill development, क्योंकि there are many people and this is what, first read it, the first truly free MBA degree. ये मैं आपको एक बहुत यूनिक स्लाइड दिखा रहा हूँ। There are many people who may really benefit from it. I have myself liked it very much. ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस स्टोरी है, और जो लोग MBA करने में इंटरेस्टेड हैं या कोई भी हायर कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रेलेवेंट है। चाहे आप 60 इयर्स के हैं, 50 इयर्स के हैं, 40 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, 18 इयर्स के लिए, दिस इज फॉर एवरीवन। ये आज के टाइम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म, आज ये जो आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या जो आपने पहले किए हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू गेन इंफॉर्मेशन। सो सबसे टॉप पर देखिए आप, नो पे MBA, उसके नीचे देखिए द फर्स्ट ट्रूली फ्री MBA डिग्री, अंडरलाइन द वर्ड फ्री। नो MBA चाहे आप इंडिया में करिए, चाहे आप बाहर करिए, जनरली एक परसेप्शन है कॉस्टली है, काफी कॉस्टली, 4-5 लाख रुपए, चाहे इंडिया में है, कोई भी है, या कोई छोटी इंस्टीट्यूट्स में है। यस देयर आर एजुकेशन लोन, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ने जो इस वेबसाइट की जो चलाने वाली है, शी इज अ फॉरेन नेशनल, जिसके बारे में उसकी सक्सेस स्टोरी में आपको बताऊंगा। शी स्टार्टेड दिस वेबसाइट एज एन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। नौ दूसरी चीज आपको जो कहना चाह रहा हूं, इंटर्नशिप की वैल्यू, शी वाज डूइंग हर MBA, लेकिन उसको MBA करते रियलाइज हुआ कि MBA इज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, काफी खर्चा होता है कई बार। देयर आर मेनी पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। लेकिन दूसरी चीज उसने क्या देखी, मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MOOCs, जिसमें फ्रीली आपको एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं, उसने, ये मैं बहुत जगह और भी आप यूज कर सकते हैं, उसने देखा एक रेगुलर MBA के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ईयर 1, ईयर 2, और अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है सप्लाई चेन में, मार्केटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑपरेशन रिसर्च में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कौन कौन से इक्विवेलेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो व्हाट शी डिड, शी क्रिएटेड एन MBA प्रोग्राम, जिसमें सारे जो सब्जेक्ट्स एक रेगुलर पेड MBA में होते हैं, वो सारे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं
जहां से आपको उसको फ्रीली कर सकते हैं, या एट अ नॉमिनल कॉस्ट 1500 रुपए, $25 देके आप उसको सर्टिफिकेट ले सकते हैं. सो दैट इज व्हाट शी कॉल्ड नो पे एमबीए. आपको फुल टाइम रेगुलर एमबीए यदि आप नहीं कर सकते, आप 2 साल अपने को नहीं निकाल सकते, आप फुल टाइम जॉब में आप रिटायर्ड हो चुके हैं, बट यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ, टुडे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इवन यू आर रिटायर्ड, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज. You can see many world leaders who are 70 plus. So, since I have worked in the government, I can tell you there are many projects post retirement में जहां पे eligibility condition में बोला जाता है कि आपका, यदि आप किसी बैंक से रिटायर्ड हैं, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हैं, आप किसी पर्टिकुलर डेयरी प्रोजेक्ट से रिटायर्ड हैं, क्योंकि आपके पास एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है. There is no replacement for experience. You can acquire the best of degrees, the best of certifications, लेकिन how to apply them, how to use them, that is what experience tells you. So experience का कोई replacement नहीं है. That is why, जिसको मैं बहुत appreciate करता हूँ, जहाँ बहुत countries ऐसी हैं जहाँ पे they don't lay lot of emphasis on degrees, they lay emphasis on skills. US में you have seen Apple, Microsoft. Why this country, that country created so many entrepreneurs. यदि आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, they will provide you funding, they will provide you loans, they will provide you a platform to get successful. So truly MBA. अब ये मैं उन लोगों को भी कहूंगा जो कई बारी कहते हैं कि हमारी डिग्री में परसेंटेज अच्छी नहीं है, हमारी ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छी नहीं है, हमारी पीजी में परसेंटेज अच्छी नहीं है. आई एम टॉकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू डिग्री फॉर यू. आपकी एक डिग्री हो गई, आप स्वयं, आई विल कम टू दैट प्लेटफॉर्म. This is an example how you can create your own courses, your own degree, your own MBA, your own BSc, your own MSc, your own accounting course, and by using the massive open learning platforms. So you can go and Google no pay MBA, free MBA. I told you the concept. Now I am telling you the Swayam. This is the Government of India platform. बहुत से लोगों को पता है, अगर पता है good, अगर पता है तो क्या आप यूज कर रहे हैं? पता होना is itself not sufficient. Now Swayam is what? Swayam is the Indian version of, जो अभी मैंने आपको पिछला स्लाइड दिखाया, the truly free MBA. MBA में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके पास कौन कौन से MOOCs अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज, उन्हीं को आप, उन्हीं सेम सब्जेक्ट्स को आप मैसिव ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म से कर लीजिए, एंड यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम द MOOCs प्लेटफॉर्म एट अ जीरो कॉस्ट. नौ स्वयं के अंदर यदि आप BSc कर रहे हैं, आप MCOM कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको फार्मास्यूटिकल में इंटरेस्ट है, फार्मास्यूटिकल को वाले को कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है, ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है. टिल नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन? आपने एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया BCom में, यू हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेबस. बाहर की कंट्रीज में भी दैट इनोवेशन इज देयर. इफ यू आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर कोर्स बट एट द सेम टाइम you have some interest in first aid, in biology, in anatomy, in physiology, you have some interest in engineering course student has some interest in financial management, in auditing, costing, in management, strategic management, digital marketing. So Swayam gives you that platform. ऐसे जैसे आप नीचे देख रहे हैं, there are 500 plus courses, इससे भी ज्यादा ही हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. अभी आप DU के स्टूडेंट हैं, कर्नाटका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं. एट अ टाइम यू कांट बी अ स्टूडेंट एट 2 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आपका किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मालूम है कि वहां का एक पर्टिकुलर कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग का, कॉस्टिंग का, ऑपरेशन रिसर्च का, डिजिटल मार्केटिंग का. और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने को सर्टिफाई करना चाहते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी हेल्प करेगा, there are various courses which are available in Swayam platform. So I encourage every one of you, go look into the Swayam courses जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या यदि आपकी कोई UG लेवल पे मार्क्स कम है, मे बी यू फील फॉर अ पर्टिकुलर जॉब you are not able to score good marks, कुछ फैमिली इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, you can create your own degree. कर सकते हैं. And there are very good companies, especially in the not-for-profit sector, international companies which give a lot of recognition. They see कि आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आपने एक अपने लिए नया kind of an education, professional education create किया. So please make use of Swayam. Swayam is a very good website.
डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप दिल्ली में, आप कर्नाटका नहीं जा पाए, without going to that university, without spending time taking admission, you can pursue the courses from your place. आप बिजनौर में हैं, आप आगरा में हैं, you want to do some course from Arunachal University, you want to do some course from Assam University, you want to do some course from maybe Karnataka University, Bangalore University, Mysore University, that option is there. Now some good options, कुछ आपके कमेंट्स भी आए थे. एक पैसिव इनकम, रिमेंबर द वर्ड पैसिव इनकम. पैसिव इनकम होती है जब कोई शटडाउन है, लॉकडाउन है, आपका जॉब चला गया है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मेनी इश्यूज आर देयर. हाउ टू क्रिएट अ बैकअप. बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है. कंपनीज में बैकअप होते हैं. कंपनीज में बैकअप क्या होता है. एयरक्राफ्ट में देयर आर 2 पायलट्स. व्हाई देयर आर 2 पायलट्स? वन को पायलट इज देयर, वन पायलट इज देयर. इन एवरी प्लेस देयर आर अ बैकअप सिस्टम. यदि कुछ चीज खराब हो जाती है, उसका बैकअप क्या. घर में इन्वर्टर होता है, लाइट चली गई, इन्वर्टर क्या होता है, बैकअप. कुछ घंटे के लिए आपकी लाइट चलती रहे, आपके जो काम है चलते रहे, बैकअप, इन्वर्टर. कंप्यूटर में आपका सीपीयू होता है, यू हैव एन इन्वर्टर, यू हैव अ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. एकदम लाइट चली जाए, आप एक्सेल पे काम कर रहे थे, पावर पॉइंट पे काम कर रहे थे, इट शुड नॉट इमीडिएटली गेट वाइप्ड ऑफ. यू हैव सम काइंड ऑफ अ बैकअप. सो आपको मैंने कुछ पहले भी बताई थी, टेरिटोरियल आर्मी अगेन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लड़के लड़कियों दोनों के लिए अच्छी बात है. 18 साल से 40 साल के बीच में यदि आपका एज ग्रुप है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. साल में 2 दफे इसके एग्जाम्स होते हैं. मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद अप्लाई करने के लिए एनकरेज करता हूं. आई हैव माई सेल्फ गिवन द एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जाम. सो बट जब मुझे इसके बारे में पता चला, इट वॉज वेरी लेट एंड आई गॉट टू वर्क इन सम कंपनीज जहां पे इसको एनकरेज नहीं किया जा सकता था. लेकिन आई एम गिविंग यू टाइमली इंफॉर्मेशन. टेरिटोरियल आर्मी इज अ गुड पैसिव इनकम. अंडरलाइन द वर्ड पैसिव इनकम. एक तो होता है रेगुलर आर्मी, आप एनडीए करते हैं, सीडीएस करते हैं, बिकॉज यू वांट टू हैव अ फुल टाइम करियर इन द आर्म फोर्सेस. सेकेंड ऑप्शन इज आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई किराना शॉप कराते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप होम मेकर हैं, you are a 35 years plus, 40 years आपका एज है, so still you have an interest to do something for the nation. आपका एडवेंचर में इंटरेस्ट है, आप अपने को फिट रखना चाहते हैं और आप अर्निंग करना चाहते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरिटोरियल आर्मी, जिसको रिजर्व आर्मी भी कहते हैं, उसमें एक स्कीम है जहां पे साल में आपको 30 डेज का सर्विस देना होता है गवर्नमेंट को, आर्मी को. इसमें सिलेक्शन होता है. पहले रिटन टेस्ट नहीं होता था इसमें, स्टेट अवे इट यूज्ड टू बी एन इंटरव्यू. Now maybe many people have got to know about it. I keep on telling about it in every session, but still 2 exams round the year. इसकी एक बुक आती है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन बुक, जो हमारे पास ई सेल में है. हम यहाँ पे जो आगे के स्टूडेंट्स के बैचेस आएंगे, आई हैव स्पोकन टू माय स्टूडेंट, आई वांट टू ट्रेन यू, आई वांट टू गिव यू कोचिंग फॉर दैट. इस बुक को आप प्रिपेयर करें. अच्छी बात क्या है, जो थोड़ा कुछ अगर एक ना लाइटर वे, कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में व्हाट हैपन, आपने कितनी भी बुक्स पढ़ ली, लेकिन यू आर नेवर श्योर कि कहीं से कुछ आ जाए, ओपन एग्जामिनेशन, सो यू आर ऑलवेज वरीड. यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, टेरिटोरियल आर्मी की एक ऑफिशियल पब्लिकेशन आती है 300-400 पेजेस की, दैट्स इट. उसी में से सिलेबस आता है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, सिंपल मैथ्स, नो रॉकेट साइंस, नथिंग डिफिकल्ट टू गेट थ्रू, बट इट इज ऑल अकाउंट ऑफ गाइडेंस. अच्छी कोचिंग मिल जाए. बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, at entrepreneurship cell you can take an online coaching, you can take an in person coaching, या आपको हमने सोर्स बता दिया, आप खुद भी कर सकते हैं. how to fill up the form, what are the benefits. So anybody who is between 18 to 42 years of age, I am repeating 18 to 42, you are a male or a female. earlier it was for male, now it has been open for females also. इसमें आपको 1 साल में कुछ 2 महीने का इनिशियल ट्रेनिंग होता है. उसके बाद देन अगेन 1 month of training is there, and the third year you have to just give 1 month from your entire year. तो जो सिंपल भाषा में 12 महीने में से सिर्फ आपको 1 महीना काम करना है. आप 1 से 2 महीने भी कर सकते हैं, 3 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इसमें सिलेक्शन हुई है, आपसे एक्सपेक्टेड है साल में सिर्फ आपको 1 महीना देना है. उस 1 महीने के लिए आपको पूरी सैलरी मिलती है जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर को मिलती है. आपको सारे आर्मी के बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो कैंटीन बेनिफिट्स हों, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं.
आई हैव सीन मेनी केसेस जहां पे उन्होंने 1 महीने से स्टार्ट किया, लेटर ऑन वो किसी और गवर्नमेंट जॉब में थे, किसी और प्राइवेट कंपनी में थे, उसको छोड़ के इन्होंने इसको फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर लिया. दे टोल्ड द गवर्नमेंट दैट आई डोंट वांट टू डू ओनली 1 मंथ, आई एम मोर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू 12 मंथ फुल टाइम जॉब. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कल को कोई बिजनेस में रिसेशन आता है, आपका जॉब चला जाता है, देयर इज अ ले ऑफ, कुछ भी इश्यूज है, ये एक ऐसा पैसिव इनकम है कि साल में आपको 1 महीने के बेस पे यू कैन प्राउडली से इन योर बायोडाटा ऑल्सो, योर पेरेंट्स विल ऑल्सो फील यू हैव सम सोर्स ऑफ इनकम. और वो एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है, यदि आपके फुल टाइम जॉब में, आपके रेगुलर बिजनेस में कोई इश्यूज हो जाते हैं, इसको आप 1 महीने से बढ़ा के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने यू कैन कन्वर्ट इनटू फुल टाइम जॉब ऑल्सो. There are very good prospects, so this is a good initiative. I will create a separate video around it. Territorial Army, Government of India. What is the eligibility requirement? You need to be only graduate. You need to be only graduate. Even final year students can apply. Age limit I have told you. Any gender, male, female can apply in it. Postal life insurance, second backup option. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको पोस्टल सेविंग अकाउंट बताया था, करंट अकाउंट बताया था, ऐसी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम है. जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज करती हैं, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता. मार्च के महीने में जो लोग जॉब करते हैं, या यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके साथ वो इस वक्त इसको देख रहे हैं, आप देखेंगे कि उनको भी अपनी सेविंग्स करनी होती है, टैक्स सेविंग्स, उनको भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है. और मार्च, दिसंबर से लेके मार्च, जो लोग थोड़ा इनकम टैक्स को समझते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेस को जानते हैं, जनवरी टू मार्च के बीच में सारी कंपनियां बोलती हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि जो भी आपका टैक्स का सेविंग है वो हम अकाउंट फॉर कर लें फाइनल टैक्स डिडक्शन में. उसको और सिंपल करते हुए, यदि आप अपने लिए इनकम क्रिएट करते हैं, बिकम अ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट. आप देख रहे हैं जॉइन एस एन एजेंट, रेन्यूमरेशन, इंडिपेंडेंस, आपको गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम्स, और जहां पे गवर्नमेंट का बैकिंग होता है वहां पे ट्रस्ट होता है, सेफ्टी होता है, नाम से प्रोडक्ट, बिकॉज पीपल हैव ट्रस्ट अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर फाइनेंस. सो बट दे आर लुकिंग फॉर पर्संस थ्रू whom they can join our insurance scheme, they can register for an insurance scheme. आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन के अपना फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं. यू कैन बी अ होम मेकर, यू कैन अटेंड टू योर वट एवर वर्क, एंड यू कैन क्रिएट अ साइड इनकम. दूसरी अच्छी बात क्या है, आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, 1 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. उससे आपके बायोडाटा में नई स्किल्स आएंगी. और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम, जब आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, आप स्वयं की भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपने लिए भी चाहिए. कई जगह बहुत हाई प्रीमियम होता है, यहाँ पे प्रीमियम इज वेरी लो. पोस्टल डिपार्टमेंट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है. अगर शहर में नहीं, गांव में इसका बड़ा स्कोप है, देहात में बड़ा स्कोप है, ग्राम पंचायत में बड़ा स्कोप है. सो पीपल हु आर सिटिंग इन रिमोट एरियाज, उन तक ये नॉलेज नहीं होती. सो यू कैन बिकम अ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट. ऐसी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बताया था. एंड लेट मी थैंक, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा हमें PM आवास योजना में पार्टिसिपेट करना है. सो वी विल डू सेक्शंस ऑन देम, हाउ टू पार्टिसिपेट इन PM आवास योजना. ऐसी LIC की तरफ से इंश्योरेंस आपने करना है, या हाउसिंग फाइनेंस एट अ वेरी चीप रेट, एट अ वेरी गुड रेट, कंपेटिटिव रेट. हाउ टू बिकम अ LIC हाउसिंग फाइनेंस कोऑर्डिनेटर. जैसे आप देख रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 21 साल से लेके 35 साल की एज. बहुत ही इसमें एक तो डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, विच इज अ फुल टाइम जॉब. आप फ्रीलांस कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, आप फ्रीलांस LIC के इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं. उसमें जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है. यू कैन बी अ होम मेकर, आप अपना फुल टाइम काम करिए, बिजनेस करिए, बिकम एन LIC एजेंट. आपके आस पड़ोस में, बिजनेस में, दुकानदार है, ऑफिस में, यू कैन डू अ पॉलिसी फॉर देम. और जो आप पॉलिसी करते हैं उस पॉलिसी पे गवर्नमेंट LIC आपको कमीशन देता है. आई विल कॉल रादर देन कमीशन, प्रोफेशनल सर्विस चार्ज देता है. सो अगेन अ पैसिव इनकम फॉर यू. और LIC आपको ट्रेनिंग भी देता है. सो आप अपने को सशक्त कर रहे हैं, अपनी नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं. दूसरी चीज, LIC पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसके थ्रू आपका नेटवर्क बनता है. कई बार लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपका नेटवर्क आपको हेल्प करता है. यू हैव अ जॉब इशू, यू हैव सम काइंड अदर प्रॉब्लम, जैसे आपने उनकी हेल्प की, वो भी शायद आपकी उस वक्त मदद कर पाए. लेकिन हाउ टू बिल्ड नेटवर्क,
ये जो लिंक्डइन है, ये लिंक्डइन अभी आया है, फेसबुक अभी आया है, सोशल मीडिया पहले नहीं था, LIC, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपका पहले और आजकल के भी रेलेवेंट टाइम्स में, दिस इज अ वे ऑफ नेटवर्किंग विद पीपल, कनेक्टिंग विद पीपल, सो मोर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। यहाँ पे आप एक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, अगेन लेट मी टेल यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट, बैंकिंग सेक्टर जैसे हेल्थ केयर है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके एक न्यूज़पेपर आता है, बैंक में पोटेंशियल क्यों है, देयर आर सो मेनी बैंक ब्रांचेस। दूसरी अच्छी चीज क्या है, ट्रांसफर। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जनरली इन द प्राइवेट सेक्टर व्हाट हैपेंस, नो मैटर इट मे बी अ वेरी बिग कंपनी, उनके कुछ ही ऑफिसेज होते हैं, गुड़गांव में, पूना में, मैसूर में, नोएडा में, दे डोंट हैव ब्रांचेस। ब्रांचेस इन द बैंक इज देयर, यू आर इन अ डिस्ट्रिक्ट, आपको एक ही बैंक के 4 आउटलेट्स मिल जाएंगे, एक ही स्टेट के अंदर बड़ी सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। सो आफ्टर अ सर्टेन टेन्योर इन बैंक, you can get yourself transferred also a place near to your family, so that advantage. दूसरा, career growth in a branch, in a bank there is a huge career growth. Internationally आप जाना चाहते हैं, you want to work in international banking, banking gives you that platform. State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda, so many bank, private, ICICI Bank, HDFC Bank, IDFC Bank, Postal Bank, शायद मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में ही बोला था, इन बैंक्स में कैसे जॉब लिए जाए, उनके लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं। और यदि आप एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, आप किसी बैंक से जुड़ गए, HDFC से, ICICI से, कैनरा बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से, उनके बिहाफ पे आप ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में जहां पे बैंक की ब्रांच नहीं है, आपको एक हैंड हेल्ड डिवाइस दे दिया जाएगा, वहां पे आप लोगों को कैश विड्रॉल की फैसिलिटी, कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी, अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं। और जितने अकाउंट आप खोलते हैं, जितने कैश विड्रॉ हैं, कैश डिपॉजिट हैं, मोबाइल ATM, यू गेट अ सर्विस चार्ज। लेकिन टू गेट टू ज्वाइन द बैंक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, दैट्स इट। वेरी सिंपल कोर्सेज जो कि आप बड़े इजीली कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर कोचिंग मिले, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और जो भी बैंक्स हैं इसको रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, रादर दे विल फील वेरी हैप्पी, योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन अ बैंक मैनीफोल्ड इंक्रीजेस if you get yourself certified from Indian Institute of Banking and Finance. Now one important thing which I want to say, in India especially, sometime what happens, you are not able to secure a admission to a very reputed college, which I don't believe. There is nothing, there should not be some kind of a feeling X college is a little bit better or a Y college. Feel proud and in so much of information which has been given to you. If you feel you have, maybe you are not able to secure admission at a particular institute, आप ये सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स अगर करते हैं या जितनी ऑप्शंस आपको बताई हैं, अपने CV को आप दूसरे वे में बेटर कर सकते हैं। I have seen many cases in my own life. I had been into recruitment roles. There were some people who were from a very good so-called colleges, but they were living into that kind of a feeling, euphoria, कि I am from a particular college. They were not so productive at the workplace. They never upgraded their skills. And there were some other people who were not from a very reputed college, but they kept on upskilling themselves. उन्होंने additional courses किए, उन्होंने अपने CV को strong किया। अब मैं एक बैंक हूँ, for example, I have to recruit a banking customer service officer. There is a person who is from a very reputed college, no experience, and there is a person from an ex-college, or as an example, maybe from School of Open Learning. She has done some courses from Indian Institute of Banking Finance. She has done some courses from प्रधानमंत्री कौशल, and उसने internship किया है, उसने volunteering work किया है, project report prepare करने का at the School of Open Learning. ऐसा banker I will be more inclined to pick up that candidate, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट इवेल्युएट करनी आती है, बनानी आती है, उसको डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, उसको डिजिटल पेमेंट्स मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज है, उसको कैसे यूज करते हैं, भीम पे का कार्ड क्या होता है, रुपए पेमेंट क्या होता है, पोस्टल बैंक अकाउंट क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर नोन. सो स्किल एंड एक्सपीरियंस, यू कैन चेंज, यू कैन इंप्रूव योर प्रोफाइल. सो नेवर हैव दैट फीलिंग. दिस इज, वी आर इन सेमिनार्स का जो मेरा भी एक बड़ा ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, to address those community, to address those people who in some way or the other
feel that they are in some way lacking in something. Never have that feeling. There is someone, this is what is the objective, to energize, to motivate you, to tell you the options. You can always improve. You own your own destiny. The underlining word is circumstance कुछ होते हैं, situations कुछ होती हैं, problems कुछ होती हैं. There are some people, उनके सामने प्रॉब्लम आई, yes it impacts, I will not say it doesn't impact you, it derails you, लेकिन how to get back in life, how to get back in life, उसके लिए you require mentoring. कोई होना भी तो चाहिए ना जो आपको गाइड कर सके, जो आपको उस टनल के एंड में रोशनी दिखाए. That is what we are trying to tell you, that at the end of the tunnel, after every night there is a morning. उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है. दूसरा, in my life I have seen there are many people who don't tell you the sources. Yeah, they tell you the sources, they give you very filtered information so that you are not able to do that. Here we are telling you the source of information, what is the path to get that information, and still if you need hand holding support, we give you ongoing support. Not only up to this 6 seminars, after that at your local state level. That is what is the objective, to create local nodal centers. We will be entering into MOUs, individual and at an institute level. So for banking this is there. फूड सेफ्टी मित्रा मैंने जो आपको बोला था, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं, खोमचे वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जहां पे ट्रेनिंग देनी है जो ये लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, होटल्स हैं, हाइजीन के बारे में, कैसे आपको सफाई रखनी है, आपको कैसे हेल्थ के कंप्लायंस करने हैं. और इन कोरोना वायरस टाइम अब तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है. इन द अनलॉक फेज बहुत सारे स्ट्रीट शॉप्स को बोला गया कि आपने हाइजीन कैसे मेंटेन, उसमें फूड मित्रा की रिक्वायरमेंट है. ये अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ दिस फूड के आप वेबसाइट पे जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग, वहां पे वैकेंसीज निकली हुई हैं. यू कैन गेट योरसेल्फ, इट्स अ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी. आप अपना रेगुलर फुल टाइम जॉब करिए, अपना बिजनेस करिए, यू कैन बिकम अ फूड सेफ्टी मित्रा. फूड सेफ्टी मित्रा के थ्रू जितने भी स्ट्रीट के वेंडर्स हैं, खोमचे वाले हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा हैं, उनको आप हाइजीन का ट्रेनिंग, उनको सर्टिफिकेशन और कैसे अपने को ऑपरेट करे, कैसे हाइजीन मेंटेन करे, दैट यू कैन डू. हाइजीन ऑडिटर्स, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, उनको लाइसेंस सर्टिफिकेशन मिलने से क्या होगा, म्युनिसिपैलिटी में जितने भी ये खोमचे वाले हैं, जब आप इनको हेल्प करते हैं म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनको कोई हैरेसमेंट नहीं होगी. What happens? Many times you must have heard there are local police or local municipal who come and who take away their van. Why? Because they are not registered. So या वो मुद्रा लोन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो पेंशन स्कीम से बेनिफिट नहीं कर सकते. क्या उनके लिए गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं है? वो बेनिफिट उन तक कैसे पहुंचे? वो रोल है फूड सेफ्टी मित्रा का, जो आप लोग खुद बन सकते हैं. आप अपना बीकॉम करिए, बीए करिए, साइड बाय साइड यू कैन बिकम अ फूड सेफ्टी मित्रा. इट विल गिव यू इनकम, it will give you in your profile, it will give you experience, and you are doing something for the society, which is very much evaluated if you are looking for jobs in big multinationals, in their CSR departments, या World Bank, International Finance Corporation, NGOs. इन संस्थाओं में देखा जाता है आपने सोसाइटी के लिए क्या प्रैक्टिकल वर्क किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगेन देयर इज वन स्कीम, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम, अगेन अ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट्स. सो पीपल हु हैव अ बैचलर्स डिग्री, जिन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, आप अगर सबसे नीचे देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बीबीए, बीबीएस, सो यू कैन बिकम एन इनकम टैक्स प्रिपेयरर. बहुत सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करनी पड़ती है और फाइल करनी पड़ती है. लेकिन हाउ टू प्रिपेयर एन इनकम टैक्स रिटर्न? द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ स्कीम TRPS, जैसे आप देख रहे हैं, जो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर. आप लोगों की टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, हर रिटर्न प्रिपरेशन पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोफेशनल सर्विस चार्ट दिया जाता है. उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है. In my times there were no such options. In today's time there are many such freelance opportunities. Postal life insurance, territorial army, LIC housing finance, LIC insurance, income tax department, food mitra, banking correspondent. You can really be a support to your family, to yourself, and you can get a lot of experience. That's it. So कुछ अगर आपको फ्रीलांस के काम करने हैं, प्रोजेक्ट देखने हैं, बहुत लोगों के क्वेरीज होते हैं कहां पे हमको होम बेस्ड अपॉर्चुनिटीज प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलेंगे. इस स्लाइड्स पे आई हैव गिवन 4 वेबसाइट्स, फ्रीलांस, ईलांस, अपवर्क.
GLG काउंसिल्स ई ग्रुप, ये ग्लोबली वर्ल्ड ओवर फेमस हैं। इन वेबसाइट्स पे कैसे रजिस्टर करें, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज के लिए, आप अपना फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करें, कैसे रजिस्टर, कैसे अपने सीवी को अपलोड करें, कैसे अपने सीवी को रेलेवेंट बनाएं ताकि आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिल सके, आपकी ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग हो सके, दैट वी विल बी डूइंग सेपरेटली। बट इन टुडे सेशन आई एम गिविंग यू दीज 4 ऑप्शंस: फ्रीलांस, ईलांस, अपवर्क, GLG काउंसिल, ई ग्रुप। यहाँ पे जॉब्स भी हैं, फ्रीलांस पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं। We move further extent that we can least stay connected, future learn. Okay, now I'm showing you some international skill development sites. Another 5 minutes, then I'll be taking up your queries. So future learn a very good website. जैसे मैंने आपको स्वयं बताया, ऐसी future learn is a very good website. If you are looking for an international career, if you are looking for skill development, अगर आपको विप्रो में काम करना है, टाटा कंसल्टेंसी, HCL, इंडियन कंपनीज और इंटरनेशनल, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, केप जेमिनी, इन ऑर्गेनाइजेशंस में you need to have skills which are of international quality. Which are the platforms जहाँ पे at a very negligible cost, आजकल which kind of a software do you know? Financial, MS Dynamics, Microsoft Dynamics, SAP के बारे में आपको knowledge है, Tally, GST. There are so many new softwares which keeps on, Oracle Financials. You have to keep on upskilling. फ्यूचर लर्न यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, किसी भी तरीके के स्किल डेवलपमेंट को आप करना चाहते हैं, फ्यूचर लर्न इज अ यूरोपियन कंपनी, वेरी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ के कोर्सेज और आप नीचे जो देख रहे हैं, गूगल, IBM, इंपीरियल, स्टैनफोर्ड, इन कंपनीज के साथ इनके टाई अप हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट और एट फ्री ऑफ कॉस्ट। दे हैव अवेलेबल मेनी ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम दीज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी कुछ एग्जांपल दिए थे। सो फ्यूचर लर्न इसका नाम है। Next, WTO, World Trade Organization. Anybody looking for a career in import export, anybody who is looking for employment, internship, looking to work with World Bank, international organizations in the export import sector, or maybe in a company जहाँ पे export import related कुछ काम होता है, or they want to upgrade their skills. World Trade Organization, many courses, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, free and open courses. My humble request you, try to gain these knowledge. Now why I am telling you these knowledge, this will help you to optimize your CV. आपको पिछले स्लाइड्स में भी काफी हमने ऐसे ऑप्शंस बताए। Now everybody cannot do everything. आप में से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो भी सोच रहे होंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, क्या मुझे सब कुछ करना है, क्या मैं प्रैक्टिकली कर? नो, आपका क्या एप्टीट्यूड है, आपका क्या इंटरेस्ट है, दैट इज द रीजन वी आर आस्किंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू बी फिल्ड अप, सो दैट बेस्ड ऑन योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेस्ड ऑन एन इंटरेक्शन विद यू, we can say what is your skill, what are your what is your aptitude, आपका किन areas में you can flourish, you can have a good career, and accordingly tell you which courses can be good for you. Once we have told you which courses, from where you can do that. So the registration form, please fill it up. आपका email ID chat से मेरे को नहीं मिला है बहुतों का, so आप chat box पे अगर कोई अपना query डाल रहे हैं, please mention your email ID, because in the email invite for the meetings which we sent, उसमें आपका ईमेल आईडी नहीं, उसमें आपका ईमेल आईडी है, वो चैट वाला हमारे पास नहीं है। सो W2, उडमी का बारे में मैंने आपको बताया। उडमी सबसे अच्छी चीज क्या है, उडमी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक MOU किया है, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया था। 6 months 1300 रुपीज 3000 कोर्सेज का एक्सेस है, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, फार्मास्यूटिकल, एनी course which you are interested in, software development, project management, financial management, quality, Six Sigma, you name it and it's there. जैसे अगर आप राइट साइड पे देखें, जंप स्टार्ट योर करियर, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक, डिजिटल, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, एनी, हाउ टू डू वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइपिंग कैसे करें, कैसे उसमें शॉर्टकट कीज को यूज करें, MS Excel, MS Access, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। टुडे यू नीड टू हैव गुड IT स्किल्स, लेकिन IT स्किल्स के लिए यू डोंट नीड टू डू कंप्लीट MCA. यू आर अ BCom, यू आर मे बी अ BA पर्सन, आपने BA किया, MA किया, आपने कोई PhD किया है, लेकिन आपको लगता है ये डाटा साइंस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, ये मशीन लर्निंंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बहुत काम करते हैं, आप यूट्यूब के वीडियोस क्रिएट करते हैं, आपको कोई एनिमेशन बनाना है, उसके बारे में आपको स्किल्स चाहिए। ये चीजें तो कुछ अभी रिसेंटली आई हैं, उडमी के थ्रू वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, डिजिटल इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमन सर्विस एकेडमी, दे हैव डन एन MOU
हर एक कोर्स यहाँ पे 400-300 रुपए का होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 1300 रुपीज 6 मंथ के लिए 3000 कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलता है. Very good scheme. There are many students in the School of Open Learning who have registered in this scheme and they are taking benefit. They are improving their CV. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनके सर्टिफिकेट देखता हूँ 18, 19, 20 साल की एज में. They are having many other things along with their BA, along with their BCom. Now when the companies come to recruit, they feel more proud and confident to say that I have relevant job skills, which is a good thing. So Open World Bank Group, again Open Learning Campus. Why I am telling you these websites? Just look, in today's time education is freely available from world class institutes. You just need to know what is that is of interest to you. आप किस दिशा में जाना चाहते हैं. यहाँ पे आप अगर कोर्सेज ऑनलाइन करते हैं, ये आपके सीवी को बहुत पावरफुल बनाता है. चाहे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इन कोर्सेज को करने के दौरान. यू विल गेट टू नो कि मेरे लिए शायद वो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट अच्छा है, मेरे लिए शायद एग्रो फूड का प्रोजेक्ट अच्छा है. जैसे आप इस वक्त टॉप पर देख रहे हैं, एक कोर्स का जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिंग स्टेटस को एग्रो फूड, जो मैंने आपको ड्रोन, एनहेंस ऑन फार्म प्रोडक्टिविटी, ड्रोन को कैसे आप यूज कर सकते हैं. कहां से? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वेरी रेपुटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट मेक्स अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर सीवी. Udacity is also a very good website जहां पे आप बड़े सारे ऑनलाइन कोर्सेज को परसू कर सकते हैं. Now Harvard Health Medical, again Harvard Health online, इसमें भी आपको बड़े सारे ऑनलाइन मेडिकल कोर्सेज. I have myself done many courses. Again, I have a lot of interest how to keep oneself fit. Don't fall sick, because if you fall sick, your many other things gets impacted. Harvard Health आजकल ऑनलाइन का टाइम है, डिस्टेंस लर्निंग का टाइम है. We are in a connected world. Harvard Medical School, very reputed. Stanford Medical School. This global health organizations, they are saying if you are interested in medical education, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए, हर एक के कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं. Since I worked in the BPO sector, I worked in the outsourcing industry, I have seen many employees having IBS issues, gut issues, health issues, stomach ailments, food related problems. But I am not from a medical background, लेकिन I have an interest. Today internet, today global learning, e-learning gives you that flexibility irrespective of your age, irrespective of your geography, irrespective of your background. You can pursue areas of your interest, and once you get certified, you not only help yourself but you can help others. Paramedic is a huge area. Paramedic means what? You can provide basic health, basic first aid to people who is having an emergency issue. Hospitals may not be open full time 24/7. Only limited emergency services are available. किसी को रात को कोई इशू है, किसी को स्टेशन पे कोई इशू है, किसी को रिमोट एरिया में कुछ इश्यूज है. Even the government is encouraging paramedics. So how to get that knowledge to become a paramedic? This is a site for the medical domain. All India Council for Technical Education. During the lockdown, the government of India has done a tie-up with edX. यहाँ पे बड़े सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको फ्रीली अवेलेबल हैं लॉकडाउन के दौरान और जो अनलॉकिंग फेज मिल रहा है. Many companies free of cost, and so you can do many of these skill development courses from the All India Council of Technical Education. No, I have not seen their advertisement coming in the newspaper. So many students, many participants don't get to know about these facilities. EDX is a very reputed organization. The government has done a tie-up with them so that जो आप students घर पर हैं, participants घर पे हैं, how to utilize your time in a productive way. National Institute of Open Schooling. बहुत लोगों को शायद इसके बारे में पता है या नहीं पता. तो स्कूलिंग, अगर आप फुल टाइम स्कूल में नहीं जा पा रहे, आपका स्कूल का कोई ब्रेक डाउन हो गया, आप मिड एज में आप स्कूलिंग नहीं कर पाए, लेकिन अब आप पढ़ाई करना चाहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म. इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स, आपको योगा करना है, कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, वो भी फैसिलिटीज आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अवेलेबल हैं. आप 10th क्लास, 8th क्लास, 10+2 अपनी स्कूलिंग एजुकेशन, अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, इनके जगह जगह कॉन्टेक्ट सेंटर्स हैं हर स्टेट में. वहां पे आप वीकेंड पे जाके क्लासरूम में जाके क्लासरूम एजुकेशन भी ले सकते हैं. इनके चैनल्स हैं हिंदी, इंग्लिश, लोकल भाषा में. आप चैनल में जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उन चैनल के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. टाटा स्काई, वेरियस, डेन,
इतने सारे केबल नेटवर्क्स हैं जिनके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का टाई अप है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सम स्टूडेंट्स फील हम बड़े रेपुटेड स्कूल में नहीं जा पाए, हम बड़े हाई स्कूल में नहीं जा पाए, हम मेट्रो में नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं। नेवर हैव दिस फीलिंग। अल्टीमेटली आपके सीवी में स्किल्स कितनी है, आप कितना अप्लाई कर पाए हैं। टुडे द सिस्टम हैज चेंज्ड। मे बी सम टाइम बैक it might be true which college you have passed out, which school you have passed out. Today there are so many options. How smartly you have developed your career. आपने कितने स्मार्ट वे में अपनी एजुकेशन को एक्वायर की है, आपने कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर की हैं, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हैं, that is what makes the difference. And today on account of internet, e-learning channels, there are so many channels which are here from the दूरदर्शन, जहां से आप अपने को एम्पावर कर सकते हैं. You can do many other things. You don't need to go to a full-time school for XYZ reasons. You don't need to go to a full-time college. You can do your vocation, your other work, and you can acquire the knowledge also irrespective of age. इसको मैंने हिंदी में भी डाला है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, वेरी गुड फैसिलिटी, जहां से आपको कोई अपना स्कूलिंग एजुकेशन 10वीं पास 12वीं पास कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है। दूसरी एक अच्छी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको NOS का पार्टनर बनना है, आपको फ्रेंचाइज खोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का इंडिया में बहुत स्कोप है, तो गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी दी है कि आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, आप उनके फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं, तो यदि आप सर्टेन पैरामीटर्स को मीट करते हैं तो आप उनका एक शिक्षा सेंटर खोल सकते हैं, जहां पे एडमिशन टेस्टिंग वगैरह आप लोगों बच्चों की करा सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स की करा सकते हैं, उनको योगा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कोर्सेज देखिए आप, टूरिज्म इज अ ह्यूज, टूरिज्म रिलेटेड अगर कोर्सेज किसी को करना है, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, फूड बेवरेज, हाउसकीपिंग कितनी बड़ी बड़ी नोएडा में, गुड़गांव में, मैसूर में, पूना में, हर सिटी में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको साफ सुथरा रखना, मेंटेनेंस करना, खिड़कियां साफ करना, वहां पे आपको बहुत हाइड्रोलिक मशीन्स चाहिए होती हैं इतनी हाइट पे जाके साफ करने के लिए। यू नीड टू बी स्किल्ड, सेफ्टी का आपको ऑब्जर्व करना है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, हाउसकीपिंग इंडस्ट्रीज में, होटल्स में यू रिक्वायर हाउसकीपिंग स्टाफ। वो हाउसकीपिंग के लिए हाउ टू रिक्वायर द स्किल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड्स यू दैट प्लेटफॉर्म। और जो अच्छी चीज आप देखिए, इंडिया टूरिज्म ITDC ने भी इनके साथ टाई अप की है। कल को आपको एविएशन सेक्टर में जाना है, एयरपोर्ट सेक्टर में जाना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेक्शंस में ही बताया था, देयर आर ह्यूज एयरपोर्ट्स व्हिच आर कमिंग अप। उड़ान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने जगह जगह छोटे छोटे एरियाज में भी एयरपोर्ट्स खोले हैं। उन एयरपोर्ट्स को चलाने के लिए ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, एयरबोर्न स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए स्किल्स चाहिए। वो स्किल्स हमें कहां से मिले, होटल्स के लिए कहां से मिले, आपको एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कैफेटेरिया खोलने हैं, उनके लिए आपको फूड की बेवरेज की नॉलेज होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस इज अनदर अ गुड करियर ऑप्शन व्हिच इज देयर। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड व्हिच आई विल टेक अप फॉर टुडे। I'll request all the participants to please take up this newspaper called Employment News. Employment News हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, डिजिटल मोड में अवेलेबल है, प्रिंट कॉपी में अवेलेबल है। पहले ये 8 रुपए का पेपर था, 13 रुपए का पेपर है। इसकी एडवांटेज क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारे डिटेल्स हर वीक में पेपर छपता है, उसमें आती हैं। दूसरा, पहले पेज पे किसी सेक्टर पे, फैशन इंडस्ट्री, लेदर, होटल, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एविएशन, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग, पहले पेज, दूसरे पेज और लास्ट के पेजों पे उस सेक्टर में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस तरीके की कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हेल्थ सेक्टर में, ऑटोमेटिव सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हेल्थ केयर सेक्टर, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, वो सारी जानकारी दी जाती है। गवर्नमेंट में इंटर्नशिप के बारे में, वॉलंटियरिंग के बारे में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आपने MBA करना है 10+2, डिजिटल मार्केटिंग कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करना है, और लास्ट पेज पे इसमें उस हफ्ते कौन कौन सी गवर्नमेंट की न्यूज हुई है, नेशनल, इंटरनेशनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है। सो फ्रॉम अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, employment news gives you that option, and newspaper is very good, especially this kind of a newspaper जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं।
टेरिटोरियल आर्मी में आपने अप्लाई करना है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट इसी में ही आता है। LIC की स्कीम, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आपने बनना है, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में आपने पार्टिसिपेट करना है, अगेन ऑल दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कम्स इन दिस। सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर इज देयर एंड नाउ आई विल बी रैपिंग अप टुडेज सेशन। लेट मी थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड योर अटेंशन। आज के भी जितने चैट बॉक्स में मैसेजेस आए हैं, एंड जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, यदि आपको रिप्लाई आपके चैट मैसेज का अभी तक नहीं मिला है, काफियों को मैंने रिप्लाई किया, प्लीज मेंशन योर ईमेल आईडी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई दैट इन द 3 to 5 days। और वी आर गोइंग टू डू यूट्यूब लाइव सेशंस, जहां पे जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, I will be taking up in those particular live sessions. We will have at least 2 YouTube live sessions every week. We will increase that frequency, so उसमें आपके सारे Q&A address हो जाएंगे। Let me again thank you and we look forward to the last session which is scheduled on the 8th of